नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। To all our viewers in China, ni hao. To all our viewers in Japan, konnichiwa. Amaria ko jambu to viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Wherever they speak Swahili. And in case you haven't subscribed to the channel, please do so. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। This is your channel, याद रख लीजिएगा प्रदीप जी। Absolutely, this is subscribe. When you click to the icon subscribe, you subscribe to the fastest growing channel of the nation, Nation Now. The fastest growing channel of the nation, Nation Now. प्रदीप जी, बड़ी अजीबोगरीब मसला है ये कि ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है बॉन्डाई बीच। इट्स इन सिडनी। इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन द वर्ल्ड, द वन प्लेस वेयर एवरीबॉडी गोस टू इन समर। यस। और वहां पर कल 2 आतंकवादियों ने 16 लोगों को मार दिया। 16 लोगों को मार दिया। कोई 30 के करीब लोग घायल हैं। और दोनों के दोनों कौन है? फादर सन डुओ, मतलब बाप बेटा, दोनों के दोनों पाकिस्तानी। दोनों के दोनों पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलिया में जाकर के यहूदियों के खिलाफ ये हरकत कर रहे हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, जो पश्चिमी देश है, मानता हूं ऑस्ट्रेलिया पश्चिमी देश नहीं है लेकिन कल्चर उनका पश्चिमी है, आज तक वो पाकिस्तान को पहचाने क्यों नहीं है? मुझे तो हमें अजीबोगरीब मसला, मतलब मैं आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। लुक एट मिस्टर ट्रंप, लुक एट ऑल द अदर्स, लुक एट दैट मैन कॉल्ड सादिक खान हु इज द मेयर ऑफ लंडन, एंड लुक एट आवर ओन पीपल। There are people here from the Wire and other places who actually say even terrorists have human rights. Can you believe it? They've actually said it. Officially बोला है even terrorists have human rights. तो हमें तो बड़ा ताजुब होता है ये बात। तो मैं हमारे जो समीर भाकरे साहब इस वक्त हमारे साथ हैं उनसे पहले भी पूछ चुका हूं, इनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं होता? अरे सर, 16 लोगों को, 79 लोगों को मार दिया एट द जूइश हानुका फेस्टिवल। यहूदियों का जो हानुका फेस्टिवल होता है उसको टारगेट करने के लिए, और आज तक उनके इस awful. In any event, we'll discuss that. We'll also discuss that the BMC is going to polls on January the 15th, 2026, and also Mr. Modi, Prime Minister Mr. Modi, is on a 3-nation tour. He is now in Jordan at the invitation of His Majesty King Abdullah of the Hashemite Kingdom of Jordan. By the way, the direct descendants of the Prophet himself, may peace be upon him. They are the direct descendants of the Prophet. That's right. So he's over there right now. He's in Amman. After that, he'll go to Ethiopia, then to Oman, which is Amman being the capital of Jordan, which is fantastic. And Rahul Gandhi, of course, held a very successful meeting in Delhi. Great rally. And he has praised, in fact, taken on everybody, including Mohan Bhagwat ji, including Election Commission. The first time he has named each Election Commission by name. Yes. He said, look, Mr. Gyanesh Kumar, look, Mr. Sukhbir Sandhu, look, Mr. Dr. Vivek Joshi, I am getting you. Yep. Yes, that's what he said. उन्होंने एक चीज कही है कि भैया देखिए, पावर जो है, हुकूमत जो है, हमेशा नहीं रहती है. The people who are saving you right now will not be in power forever. Let's go straight across to our guest. We've got a lovely panel, wonderful panel today. Let's go to our guest, Mukesh Gandhi Saab. Namaskar. How are you, sir? Namaskar. Namaskar. Jai Shri Ram, sir. Har Har Mahadev. How are you? Vande Mataram. Sanjay Dwivedi ji, Vande Mataram, sir. Vande Mataram. Vande Mataram. Jai Hind. Jai Hind. Jai Shri Ram. हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। वैसे आज एकादशी भी है, आपको एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको भी। डॉक्टर समीर और समीर भाकरे साहब, आई होप यू डू अ पीएचडी वेरी शॉर्टली। मेरे मुंह से हमेशा डॉक्टर निकलता है आपके लिए, समीर भाकरे साहब, बट यू आर सो लर्नेड, यू आर सच अ लर्नेड मैन। इट्स अ प्लेजर ऑलवेज टू मीट यू, सर। इट्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। तो सर, वेरी गुड न्यूज एंड वेरी गुड न्यूज एंड ऑफ कोर्स वेरी वेरी बैड न्यूज इन टर्म्स ऑफ, मतलब ट्रंप साहब के टैरिफ और ना जाने क्या कुछ, और हमारे एक्सपोर्ट जो हैं वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन, समीर भाकरे साहब? और उसके अलावा दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट द डेफिसिट, द ट्रेड डेफिसिट इज सो लो। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट आज तक इतना कम नहीं हुआ। समीर भाकरे साहब, फर्स्ट आप शुरू करें सर, बोलिए प्लीज, ये जरा समझाइए कैसे हो गया सर। राजीव जी, प्रदीप जी, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। भी नमस्कार।
देखिए, आईएमएफ ने कुछ दिनों पहले बोला था कि इंडिया इज द ब्राइट स्पॉट इन द वर्ल्ड। आपने देखा होगा अभी हाल ही में जो जीडीपी के आंकड़े आए हैं वो 8.2% की ग्रोथ इंडिया की हुई है। उसके बाद रिकॉर्ड आप देखिए एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं। जी। इन्फ्लेशन सबसे लो लेवल पे है, मतलब आप अगर देखेंगे तो इन्फ्लेशन सबसे लो लेवल पे है। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रिकॉर्ड हाई पे है। सो जब ये देश का नेतृत्व एक ऐसा इंसान करता है जो पूरा चौबीसों घंटे सिर्फ देश के बारे में सोचता है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ये चौबीसों घंटे देश के बारे में सोचते हैं, और सिर्फ सोचते नहीं है, करते हैं, और करते भी है, और उनके पास टीम्स भी है, और उनके कार्यकर्ता जैसे हम लोग जैसे कार्यकर्ता जमीन पे है। तो हर आदमी उनके एक विजन के साथ जुड़ा हुआ है, और ये मैं तो कहता हूं कि ये जीत हमारे 140 करोड़ लोगों की है, चाहे वो अपोजिशन के भी लोग हो, लेकिन मन ही मन में उनको भी पता है मोदी जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं। संजय भाई भी है यहाँ पर, उनको भी पता है कि मोदी साहब कितना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन पार्टी लाइन को डिफेंड करना उनकी मजबूरी है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि आज जो इकोनॉमी का हमारा स्टेटस है वो दुनिया में एक ब्राइट स्पॉट है, और पूरी दुनिया हमारे तरफ देख रही है। लेकिन यहाँ पे समीर पाटिल साहब करेक्शन, द फिगर इज फॉर नवंबर सर, नॉट फॉर अक्टूबर। नवंबर का फिगर है, वेयर एक्सपोर्ट्स हैव रिजन बाय 15.5%। इट्स अ मिरेकल। अरे सर, मतलब अनबिलीवेबल। बट as you said, the credit goes to the Prime Minister, to the Commerce Minister and to the government for providing so many incentives to our exporters. अब आप please complete sir. समीर पाटिल साहब, sorry for interrupting you, please go ahead. अभी जो एक्सपोर्टर्स है, जो सभी उद्यमी है, सभी बैंकर्स है, सरकार के मंत्री है, हमारे ब्यूरोक्रेट्स है, और पूरी जनता है, ये मतलब कहीं ना कहीं जो एक्सपोर्ट हो रहा है कोई ना कोई फैक्ट के प्रति देखने का बहुत बड़ा है। और आई एम वेरी हैप्पी कि एक हिंदुस्तान जो आज रियल सिविलाइजेशन का जो अवेकनिंग है वो ऐसा हो रहा है कि देखिए विरासत भी है, विकास भी है। अगर हम काशी की बात कर रहे हैं तो हम मंगलयान की भी बात कर रहे हैं, हम अगर इसरो की बात कर रहे हैं तो हम भगवान श्री राम की भी बात कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ मॉडर्न मटेरियलिस्टिक चीजों में इन्वॉल्व है, हम एक सिविलाइजेशन अवेकनिंग भी कर रहे हैं जो भारत की खोई हुई जी साहब चेंज। पृथ्वीराज चौहान फोरकास्ट किया है, बोले दिसंबर 19 को एक बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। सेंटर में शायद मोदी जी जाएंगे, निकलेंगे, और महाराष्ट्र के कोई व्यक्ति वहां पर प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री महाराष्ट्र से कोई प्रधानमंत्री बनेगा। ये पृथ्वीराज चौहान जी को अचानक ये फोरकास्ट किस प्रकार, what prompted him to talk like that? देखिए सिंपल है प्रदीप जी, पृथ्वीराज चौहान जी और पूरी कांग्रेस की लीडरशिप जो महाराष्ट्र की है वो हाशिए पे चले गई है। तो न्यूज में बने रहने के लिए ऐसे कुछ तो भी वो बात करते हैं। हमारे सभी नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को हमारे देश के प्रधानमंत्री है, और हमारे ऐसी प्रक्रिया नहीं होती है कि जैसे कांग्रेस पार्टी में होती कि भाई किसी को भी उठा के आप प्रधानमंत्री बना देंगे। एक दिन सोनिया गांधी को के सामने लोग रोए और उन्होंने जाके डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया। भारतीय जनता पार्टी ऐसी नहीं चलती है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये हमारी संघर्ष की पार्टी है। तो हमारे यहाँ आज प्रधानमंत्री मोदी जी है, और देवेंद्र जी ने भी बार बार कहा है कि हिंदू संस्कृति में ऐसा है, जब तक हमारे घर के मुखिया है तब तक कोई उत्तराधिकारी की बात नहीं होती। ये हमारी मुगलों की संस्कृति नहीं है कि जहां पर हम फादर के रहते हुए हम हमारी सत्ता की भूख के लिए कुछ भी करेंगे। तो ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, विचार की पार्टी है, आइडियोलॉजी की पार्टी है। तो यहाँ पर सत्ता से ज्यादा देश का विकास, और इसमें तो मैं ऐसा समझता हूँ कि पृथ्वीराज चौहान साहब को कुछ कभी न्यूज में बने रहने के लिए उन्होंने कुछ सनसनीखेज बात करने की कोशिश की, बट नोबडी इज बाइंग दैट एक्चुअली। Sir, they're all talking about the Epstein files. I don't know what we have to do with the Epstein files. God only knows. I mean, I have no idea. They did say one of the documents in the Epstein files says that Jeffrey Epstein and some other Democrat leaders at that time wanted a meeting with Mr. Modi, so they contacted Hardeep Singh Puri Saab. Now, what is wrong with that? I have no idea, but that's what they say. But that's one small figure for you, which has already appeared. I think it must be appearing over there in our breaking news. Exports from April to November, Mukesh Gandhi साहब सुनने वाली बात है. Exports from April to November are at US dollar 562.13 billion dollars. $562.13 billion, sir. April to November. I mean, this is huge. And the trade deficit has never been so low ever. मतलब के मैं बयान नहीं कर सकता how happy I am to see this. This is amazing.
एब्सोल्युटली अमेजिंग। जहां पर कैलकुलेशन हो रही थी कि ट्रंप टैरिफ्स की वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स नीचे आ जाएंगी, सबकी हालत खराब हो जाएगी, आवर एक्सपोर्टर्स, आवर बिजनेसमैन, हमारे जितने भी लोग व्यापारी हैं, दे फाउंड न्यू मार्केट्स and they have sold their goods over there, and this is in spite of the fact that trade with US has fallen by 15 to 20%। और अगर मान लीजिए वो भी होता अभी तो बाकरे साहब ये तो $600 billion होता। I mean, I'm amazed at this. This is really fantastic, really great news। आपको लगता है this will continue sir even in December? क्या लग रहा है सर आपको? देखिए राजीव जी, इंडियन इकोनॉमी इज ऑन अ रोल नाउ, मोमेंटम इज विथ आवर कंट्री। और मैं आपको एज अ फाइनेंस पर्सन बता सकता हूं कि देयर इज सो मच बॉयंसी अमॉन्ग बिजनेस पीपल, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु वांट टू गो फॉर न्यू इंडस्ट्रीज, देयर आर एक्सपोर्टर्स, देयर आर होल लॉट ऑफ कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच आर लुकिंग विथ टुवर्ड्स इंडिया, बिकॉज एक सिंपल चीज है सर, हम लोग हमारे एथिक्स से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, हम लोग कोई आक्रमणकारी या एक्सपांशनिस्ट नहीं है, वी एक्सपोर्ट आवर कल्चर बट नॉट पावर। और दूसरी बात ऐसी है कि इंडिया इज अ ट्रस्टेड पार्टनर अंडर मिस्टर मोदी। मोदी साहब ने कभी ये लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम जो है इसको कभी घास नहीं डाली और पूरी दुनिया को एक स्टेबिलिटी दिखती है। और मैं तो मानता हूं कि आज से हम लोगों ने ये लिबरल शब्द भी लेफ्ट वालों के साथ नहीं रखना चाहिए। एक्चुअली इट इज एन इंसल्ट टू द लिबरल, टू द वर्ड लिबरल। यस यस, एक्चुअली इट शुड बी लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट, इट शुड बी कांग्रेस लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट, it should be always left extremists, not left liberals or fascist। the world over you are seeing कि आज सिडनी में बॉन्डी बीच में क्या हुआ सर। मैं 2023 दिसंबर में सिडनी में वन ऑफ माय क्लोज रिलेटिव्स लिव, सो मैं वहां गया हूँ बॉन्डी बीच पे। मुझे पता है कि हाउ हैप्पी एंड प्रॉपर एनवायरनमेंट है, और वहां जाके पाकिस्तान के बाप बेटे जाके आतंक मचाते और जूस के खिलाफ वायलेंस करते। वो यही बात हुई पहलगाम में, जैसे धर्म पूछ के मारा वैसे ही आप जूस के खिलाफ है। तो अगर कोई भटका हुआ नौजवान है क्या, मैं तो ये कहता हूँ कि भटके हुए बाप की भटकी हुई औलाद है ये तो अगर ऐसे है तो हमारे देश के जो लोग हैं, राजनीति बाजू में रखिए, लेकिन अगर आपको किसी चीज को बोलना है तो आज कोई बड़ा कंडेमनेशन कोई बड़े लीडर अपोजिशन से नहीं है कि भाई ये अगर इस्लामिक आतंकवाद हो रहा है तो इसमें डरने की क्या बात है। सॉरी टू एवरीबॉडी एल्स, माय अपॉलॉजीज टू एवरीबॉडी। आई हैव टू आस्क समीर बाकरे साहब वन मोर क्वेश्चन। सर, एक शख्सियत है जिनका नाम है अरफा खानम शेरवानी। अरफा खानम शेरवानी is now a spokesperson. She is supposed to be an Indian, but I think she is carrying a US passport if I am not mistaken. She is some founding editor or something of the Wire. वो लिखती हैं कि even terrorists have human rights, ऐसा उन्होंने लिखा है। रेड फोर्ट का, लाल किले का जब टेरर अटैक हुआ, उन्होंने कहा कि आतंकवादियों के भी मानवाधिकार होते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है सर। दूसरी चीज है, आज जब सारी दुनिया बॉन्डाई बीच पे जो हुआ, ऑस्ट्रेलिया में जो पाकिस्तानियों ने आतंक मचाया, 16 लोगों को मार दिया, 30 लोगों को अस्पताल भिजवा दिया, उसके खिलाफ सुनने वाली बात है सर, नॉट अ लाइन ऑफ कॉन्डेमनेशन। आज वो अपने एक्स हैंडल पर लिखती हैं किसके बारे में? गाजा के बारे में, इजरायलियों के बारे में। एंड सो इज द केस विद सो मेनी अदर पीपल, इंक्लूडिंग राना अयूब, इंक्लूडिंग सो मेनी अदर पीपल। ये द वायर, scroll.in और ये बाकी जो सो कॉल्ड लेफ्ट यूनिवर्स है, दे अपने मुंह से जबान अटक जाती है इनकी। मतलब आप सर टेररिज्म को कंडेम कीजिए ना, आपने इनोसेंट लोगों को मार दिया बेरहमी से, बंदूक उठा के ठाए 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 मां आपने मार दिया आदमियों को, और आपके मुंह से कॉन्डेमनेशन तक नहीं होती है। सर आप बताएं समीर बाकरे साहब, बिफोर आई गो टू मुकेश गांधी साहब प्लीज। देखिए, आपने जिन दो व्यक्तियों के नाम लिए, मैं तो कहता हूं कि दे आर द मस्ट बी ऑन द पेरोल ऑफ इंटरनेशनल टूल किट्स, और उनके खिलाफ काफी, जैसा आपने पहले जिनका नाम लिया उनके खिलाफ भी कानूनी एक्शन चल रहा है। उन्होंने जो डोनेशंस कलेक्ट किए थे वो डाइवर्ट किए, देयर इज अ केस बीइंग फाइल्ड अगेंस्ट हर, द मैटर इज सब जुडिस। और दूसरा, उन्होंने जो आपने अरफा जी का बात किया, उन्होंने तो कहा है कि हमने हमारी स्ट्रेटेजी बदली है, मकसद नहीं बदला है। देयर इज अ फेमस वीडियो कि वो चाहते हैं कि शरिया का जो यहाँ पर कानून है वो एस्टेब्लिश हो, और अलग अलग तरीके से ये लोग कोशिश कर रहे हैं। तो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की नीति साफ है, अगर नेशनलिज्म और हमारे देश के खिलाफ जो भी बोलेगा, वो चाहे कोई धर्म जात पंथ का हो, हमारा देश का दुश्मन है।
और अगर कोई निरपराध लोगों को मारता है तो वो तो सबसे बड़ा उनकी कौम का भी दुश्मन है। लेकिन मुझे सबसे आश्चर्य लगता है कि अपोजिशन पार्टी भी इनके साथ हो जाती है कभी कभी, और हमारे देश के जो मुस्लिम भाई है वो भी इसका कंडेमनेशन क्यों नहीं करते। मेरा ऐसा, आई एम नॉट पुटिंग देम टू द टेस्ट, लेकिन अगर आप धर्म के नाम पर किसी को मारा जा रहा है तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि आपने सामने आके उसको कंडेम करना चाहिए। और ये बीटिंग अराउंड द बुश नहीं है। अगर प्रियंका गांधी जी पैलेस्टाइन का बैग लेके घूमती है तो उनको आज कंडेम करना चाहिए बहुत इससे तरीके से कि ऐसा वायलेंस नहीं चलेगा। तो ये कैसा है, ये अपनी वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में मुझे नहीं समझता कि ऐसी कौन सी वोट बैंक है कि जो निरपराध लोगों को मारने के बाद खुश होती है। ऐसी कौन सी वोट बैंक है जो धर्म का गलत इस्तेमाल करने को इनोसेंट लोगों के गले काटती है, उनके ऊपर फायरिंग कराती है। मुझे तो सही में कभी कोई समझ में नहीं आता कांग्रेस पार्टी की सोच है या बाकी अपोजिशन पार्टी की कहां और तक। यहाँ पर मैं ये सबके सामने बताना चाहता हूँ। राजीव जी एक ही पॉइंट कंप्लीट बोलिए बोलिए सर प्लीज। जैसा अभी एक कार्तिकेय दीपम का जो इश्यू हुआ तमिलनाडु में, आप बताइए, उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी के जो अरविंद सावंत है उन्होंने साइन किया है। अरे भाई मंदिर पे जाके दीप लगा रहे और वो कोई मुस्लिम लोग भी अपोज नहीं कर रहे उसको। डीएमके कहती है कि कोई नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा, और ये यूबीटी के लोग जाके साइन कर रहे। उद्धव ठाकरे इतना इंटॉलरेंस है कि आप जाके उसके ऊपर खिलाफ महाभियोग लेके आ रहे। अरे आपको हाईकोर्ट का फैसला मंजूर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में जाइए ना, और आप एक जज के खिलाफ जा रहे। तो ये टायरनी, मतलब ये जो है जमींदारी है, ये लोग मतलब दे हैव अ जमींदारी माइंडसेट कि भाई साहब हमारी हुकूमत चलेगी इस देश पे। और कांग्रेस पार्टी हो चाहे कोई भी परिवारवादी पार्टी हो, मैं तो आह्वान करना चाहता हूँ कि भाई देश पहले आता है। हमारे पार्टी का स्लोगन है राष्ट्र प्रथम, उसके बाद पार्टी, फिर खुद। तो अगर देश पहले आता है तो आप कंडेम कीजिए ना। चाहे मदुरई के मुसलमानों ने कहा है हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हिंदू कहते हैं हमें कोई आपत्ति नहीं है, सिर्फ डीएमके को आपत्ति है। When there is option, आपके legal remedy lies in the Supreme Court. So go to the Supreme Court. न जाते हुए impeachment motion. And 2 दिन पहले प्रियंका गांधी जी सबको जिस प्रकार, you want to go to Mukesh Gandhi? I wish to go to Mukesh Gandhi, but before that I would like to state something. सर सुनने वाली बात है, मुकेश गांधी साहब, संजय द्विवेदी जी और समीर बागरे साहब, आई हैव मिस्टर राहुल गांधी एक्स अकाउंट ओपन इन फ्रंट ऑफ मी। मैं वेट कर रहा था कल से अभी तक कि जो ऑस्ट्रेलिया में आतंकवादी हमला हुआ, 2 पाकिस्तानियों द्वारा 16 लोगों को मारा गया, यहूदियों को, और 30 लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया, कि उसका कॉन्डेमनेशन आएगा। एक लाइन नहीं आई सर। Mr. Rahul Gandhi has not even condemned the terrorist incident at Bondi Beach in Sydney, Australia. Not one line, sir. Not even a line. मुकेश गांधी साहब प्लीज आप बताएं सर, ये क्या है? इतना बड़ा टेररिस्ट इंसिडेंट हो जाता है कहीं, 2 पाकिस्तानी उसमें शामिल हैं, 79 लोगों पे ढाई गोलियां चला रहे हैं, 6 वेपन्स हैं उनके पास, और राहुल गांधी जी उसको कंडेम भी नहीं कर रहे। मुझे तो ताज्जुब हो रहा है। इंदिरा जी की मौत हुई टेररिस्ट एक्शन की वजह से, राजीव गांधी जी की मौत हुई टेररिस्ट एक्शन की वजह से, और राहुल गांधी जी इसको कंडेम भी नहीं कर रहे। मुकेश गांधी साहब ये क्या है? क्या समझते हैं आप, ये क्या हो रहा है? सर प्लीज बताएं। देखिए राजीव जी, प्रदीप जी, जब तक राहुल गांधी के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता, वो खोटा सिक्का है, वो खोटा सिक्का टन 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 आवाज करता रहेगा। पर जो सच्ची बात है, वो सच्ची बात करने की उनकी जिगर भी नहीं है, ताकत भी नहीं है, और कोई विजन भी नहीं है। राहुल गांधी ने भले दिल्ली में हजारों लाखों लोगों को इकट्ठा कर दिया रामलीला ग्राउंड पे, पर लोगों को इकट्ठा करना तो आज बहुत सहज है। 15-20 करोड़ का खर्चा करो तो राजीव जी आप भी एक बड़ी सभा ले सकते हो। आप भी अपने आरकेबी शो को 15-20 करोड़ रुपया खर्चा करके 2 लाख लोगों को शिवाजी पार्क में इकट्ठा कर सकते हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है आजकल। पर ये करने के बाद में राहुल गांधी के अंदर आज तक राष्ट्र निष्ठा और हमारा सांस्कृतिक परंपरा और हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, इनके प्रति उनका अभिगम एकदम जीरो है। ही वॉन्ट्स टू बिकम हीरो, बट कोई भी आदमी देश में तब हीरो बन सकता है जब वो अपनी परंपरा के साथ में अपना अनुसंधान करता है, तब वो हीरो बनता है।
आज आप देश के जितने भी नेता हैं उनको देखो कि उन्होंने इतिहास के पन्नों से कुछ सीखा है, समाज को दिया है, समाज में परिवर्तन लाए हैं, उनके कारण वो देश के अंदर एक बड़े नेता, एक बड़े महापुरुष बने हैं। सारा लिस्ट है हमारे सामने। और दूसरी बात यह है कि मोदी जी ने इतने ऑड्स के बीच में, इतनी तकलीफों के बीच में, इतने प्रहारों के बीच में, अभी यही राहुल गांधी एंड पार्टी हमारे मोदी जी के लिए आज इतना खराब वाक्य बोलते हैं कि मोदी को कब्र, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये है लाइन। मोदी तेरी कब्र खोदेंगे, जी, जी। ये वाक्य बोलने से भी जी, मौत के जी। सौदागर से लेकर के मौत के खून की दलाली के सिवा, लेकिन वो कांग्रेस के लोग नहीं थे सर। मोदी जी को मुकेश गांधी साहब वो कांग्रेस के लोग नहीं थे, ये भी आपको बता दूं। वो किसी ने खड़े किए थे वहां पे जो जाने भी के? पर उनके समर्थन वाले थे ना, नहीं थे सर। उनके सामने, अरे सर उनके नहीं। सामने कांग्रेस ने तो कोई कंटेम नहीं किया। अरे किया सर, किया, हर एक ने किया। राशिद आलवी से लेकर के राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी ने हर एक ने कहा आप 10 के 8 लोगों को लेकर के आ गए और वहां पर आपने ये शूट कर लिया, ये तो हमारे लोग हैं ही नहीं। एनीवे, लेट्स नॉट गो इनटू दैट। But I want to- जो भी है, I want एक to- बात मुकेश गांधी साहब, मतलब but- ये है कि ये जितने भी ऑपोजिशन के जो भी लोग हैं, जी। ये इस प्रकार से मोदी जी के ऊपर प्रहार करेंगे, जी। पर उनके सामने उनके लंबे आयुष्य की प्रार्थना करने वाले हमारे देश में करोड़ों लोग। गांधी साहब, मगर मोर्चा लेना क्या गलत है? अगर वोट चोर, गद्दी चोर का वहां से स्लोगन राहुल गांधी देता है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर ये कह रहे कि इम्यूनिटी, इलेक्शन कमिश्नर को इम्यूनिटी क्यों चाहिए? मुकेश गांधी साहब, कौन सा गलत काम करने वाला है इलेक्शन कमिश्नर? जो राहुल गांधी जी पूछ रहे, जो 3 नाम लेकर उन्होंने कहा, आज तक तो नहीं। ज्ञानेश कुमार सुनिए, सुखबीर सांधु सुनिए, डॉक्टर विवेक जोशी सुनिए, यू विल बी हेल्ड अकाउंटेबल वन डे। इसमें व्हाट इज रॉन्ग? आई मीन, व्हाई इम्यूनिटी? गांधी साहब, इट डिफाइज ऑल लॉजिक। सर, राहुल गांधी क्या है कि इलेक्शन कमिश्नर से, सुप्रीम कोर्ट के जज से, संविधान के एक्सपर्ट्स के, सबके ऊपर जैसे वही एकदम इंटेलेक्चुअल्स है, उनको ही खाली दृष्टि है, विजन है, ऐसा दिखावा करते हैं। मुकेश गांधी साहब, सवाल का जवाब दीजिए ना, सवाल को जवाब। इम्यूनिटी किस लिए? वही जवाब देता हूं ना कि सर, तो फिर राहुल गांधी इम्यूनिटी क्यों चाहिए उनको? इम्यूनिटी जो बात है, इम्यूनिटी ये सबको, एवरीबॉडी इज अफेक्टेड बाय दैट। ये बिना सिर्फ प्रहार करने से थोड़ी प्रश्नों का सर, सवाल निकलता है। सुरक्षा क्यों चाहिए इलेक्शन कमीशन अभी को? जो 3 सुरक्षा नाम क्यों उन्होंने चाहिए? बोला, तीनों इलेक्शन कमीशन को जिस प्रकार से उन्होंने नाम लेकर राहुल गांधी जी ने चुनाव कि व्हाई डू यू वांट इम्यूनिटी एंड व्हाई हैज द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड देम इम्यूनिटी? नाउ गांधी साहब, देयर इज नो रीजनेबल आंसर टू दिस। There is no reasonable answer. रीजनेबल आंसर आप कुछ दीजिए। सर, इसके बारे में हमारे रूलिंग पार्टी ने सारे जवाब दिए हुए हैं। क्या? और ये जो बात है ना, ये इसको बढ़ावा देने में कोई मतलब नहीं है, क्यों क्योंकि नहीं है, राहुल सर? गांधी क्यों अपने नहीं है? उल्लू को सीधा करने के लिए सर, क्यों कुछ नहीं भी है? प्रहार सर, करेंगे। यहाँ पर immunity इनको सिर्फ जाकर प्रेसिडेंट के साहब को सुप्रीम होती है। कोर्ट में इनके बारे में अपनी फाइल कर दी चाहिए। मुकेश PIL गांधी साहब, नहीं Now, करते हैं। give a good No. reason answer. You know, आप एक What reasonable is the answer answer? दीजिए। Why? Why should an नहीं, आप election आंसर commission? दीजिए ना, आप क्या आंसर देते हैं? No, he doesn't deserve an मैं नहीं दे immunity. सकता हूँ, आप क्या दे सकते हैं? Immunity. He doesn't deserve an immunity. Why sir, should nobody has, sir, nobody, even if a person is holding a constitutional post apart from the president of India, deserves immunity. Let's be very clear. Everybody is under the law. Sir, हर कोई under the law होता है। समीर बाकरे बोल समीर बाकरे साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए सर, प्लीज। Sir, there is no immunity which is given new 1951 का जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, जिसमें जो भी प्रावधान है वही 2023 के कानून में है। संसद के पटल पर आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने क्लियरली कहा है। तो कोई ये भ्रम फैलाने की कोशिश है राहुल गांधी की कि कोई इम्यूनिटी दी है, और कैसा है, अगर आप कोई इलेक्शन कमीशन को नाम से पुकार रहे हैं तो जनता तो आपको नाम से पुकार के बाहर कर रही है। यू आर बिकमिंग आउट। लेकिन समीर बाकरे साहब, इसमें एक छोटी सी चीज सामने आती है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कहां से उत्पन्न होती है? समस्या कहां से शुरू होती है? समस्या यहां से शुरू होती है कि स्पीकर साहब ने कोई भी डिस्कशन चुनाव आयोग पे डिसअलाउ कर दिया कि भाई चुनाव आयोग के बारे में आप कुछ नहीं बोलेंगे, बाकी सब चीज के बारे में बोलिए। लेट्स बी वेरी क्लियर, दैट इज नॉट राइट सर। इट्स अ डेमोक्रेसी। एवरीथिंग, I have been as I told you, I've been a journalist for a very long time.
Nothing is everything was sacrosanct. discussed in the parliament. Nothing is sacrosanct. Everything should be discussed and should be out in the open. सर इलेक्शन के Everything is रिफॉर्म्स के बारे में तो डिस्कस Including, by the way, including the armed forces. Let me tell you very frankly. I have discovered more scandals in the armed forces than anybody else. Let me tell you this. I was charged with sedition twice for my stories exposing what the armed forces are doing. ये भी आपको बता दूं, जहां पे एक हमारे आर्मी चीफ हुआ करते थे, वो जवान्स की दारू को उठा करके अपनी पार्टी में इस्तेमाल कर रहे थे, वो भी मैंने एक्सपोज किया है सर। उसके ऊपर भी मेरे खिलाफ एक सेडिशन केस डाल दिया था। और ये सारे देशद्रोह के केस जो है सारे कांग्रेस ने किए थे, बीजेपी ने आज तक कभी ऐसा नहीं किया। ये भी आपको I want to ask Gandhi Sahab, any bureaucrat acting in good faith is always absolved of all charges. तो ये immunity का चार्ज आपको क्या लग रहा है? You have been a politician, you have been seeing things very closely. What is the answer to that? सर ये इम्यूनिटी का चार्जेस जो है इसमें कोई वजूद नहीं है। आप उनको हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी ने ये सब्जेक्ट उठाया है। बाकी इलेक्शन कमीशन के ऊपर उनको जितनी भी सत्ता दी है वो सत्ता का दुरुपयोग वो नहीं करते हैं और वो किसी को प्रेफरेंस एंड प्रेजुडाइज से मतदान करने के लिए या कोई पार्टी की फेवर और किसी की डिसफेवर का काम नहीं करते हैं। तो राहुल गांधी का ये जो सारा आरोप है वो बेबुनियाद है। जी, कहने का मतलब ये हुआ आपके मुताबिक, क्योंकि देखिए साहब ऐसा है, भले ही आप उनको इम्यूनिटी दें या ना दें, मैं एक चीज छोटी सी बात आपको बता दूं, इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ यू कैन नॉट प्रूव एनीथिंग एनीवे। लेट्स बी वेरी क्लियर, यू हैव टू प्रूव दैट ही हैज एक्टेड इन बैड फेथ। यू कांट डू सो। देयर इज नो वे दैट यू विल बी एबल टू कलेक्ट इनफ एविडेंस टू शो दैट एनी इलेक्शन कमिश्नर हैज एक्टेड इन बैड फेथ। इट इज नॉट पॉसिबल। तो एक्चुअली उनको इम्यूनिटी की जरूरत है नहीं, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। संजय द्विवेदी जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे सर, बोलिए। सर इसमें तो क्या है राजीव जी, एक मिनट जी बोलिए। इसमें तो मुझे लगता है कि सेशन जैसा एक एग्रेसिव कमिश्नर आ जाएगा ना, तब राहुल गांधी को भारी पड़ेगा। सर राहुल गांधी को नहीं, सबको भारी पड़ेगा। मुकेश गांधी साहब, बिकॉज क्या इम्यूनिटी कौन कौन ले रहे हैं? हमारे पड़ोस के देश के फील्ड मार्शल, उनको लाइफ टाइम इम्यूनिटी दी है। कुछ भी करो, आपको कोई कानून का चीज, क्राइम, यू विल नॉट बी टच्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये जब होता है और फिर यहां पर इस देश में भी इम्यूनिटी का बात आते हैं, तब लोग शंका से देखते हैं कि भाई ये कौन सा क्राइम कर रहा है। let me point this out, Pradeep ji, sorry, let me play devil's advocate over here. I am not a member of the BJP, all right? BJP will never take me, ये भी आपको बता दूं। अगर बीजेपी को और बीजेपी को अपना अगर शटर डाउन करना तो मुझको ले ले, मैं सीधी बात आपको बता रहा हूं। लेकिन इम्यूनिटी की बात कहां से आती है? एक्चुअली स्पीकिंग समीत बाकरे साहब, देयर इज नो इम्यूनिटी इन द ओरिजिनल पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट। हाउएवर 2023 में इम्यूनिटी लाना अनिवार्य हो गया क्योंकि जब आप इलेक्शन कमीशन को बार बार अटैक कर रहे हैं, यू हैव टू प्रिवेंट एनी केस फाइल्ड अगेंस्ट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सर कोई मद्रास में फाइल करेगा, कोई कलकत्ता में फाइल करेगा, कोई अहमदाबाद में फाइल करेगा, सर कहां कहां बेचारे ज्ञानेश कुमार जी कहां कहां भागेंगे। सो इम्यूनिटी इज नेसेसरी। However, that immunity should also contain a rider that if maleficence is proven, then that immunity ceases to exist. That's my opinion anyway. We'll talk about it. I am coming to you, Sameer Pakel sahab. Sanjay Dwivedi ji has not spoken at all, so let me go to him. Sanjay Dwivedi ji, बोलिए सर आप। अब आप बताएं। सर नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। 40 मिनट सर बैठे, 40 मिनट से। 40 मिनट से? सॉरी सर। जी जी सर सॉरी। 5-5 मिनट से शुरुआत कर लिया करिए सर। सर बोलिए। सर आपका चैनल है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत माफी मेरी तरफ से कि आपको इतनी देर तक इंतजार करना पड़ा। लेकिन आपको भी मजा आ रहा होगा दोनों महानुभावों को सुन के। सर मैंने दोनों विद्वानों के अपने सुने। जी बोलिए प्लीज। आपका भी सुना मैंने। सर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा भाई पार्ट पवार नॉट FIR, क्योंकि भ्रष्टाचार को खत्म करने का मोदी जी ने संकल्प लिया था सर कि सब भ्रष्टाचार नहीं होगा। लेकिन आज क्या है, इनकी पार्टी में भ्रष्टाचार 1800 करोड़ रुपए करे, 1500 करोड़ रुपए करे, सब माफ है। लेकिन जो भ्रष्टाचारी नहीं है विपक्षी दल में, चाहे संजय राउत हो, अरविंद केजरीवाल हो, झारखंड के मुख्यमंत्री हो या और तमाम लोग हो, वो सब जेल चले जाते हैं। जैसे आपके चैनल के, जो मैं चैनल का नाम नहीं लूंगा, मियां देवी बेचारे अरे संजय द्विवेदी साहब मुंह मत खुलवाओ, जिनकी आप बात कर रहे हैं, आप प्रणय रॉय और राधिका रॉय की बात कर रहे हैं, मेरा मुंह मत खुलवाओ।
मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, सर सीबीआई ने कहा कि कोई केस नहीं, सीबीआई अभी बोला कि क्यों बोला वो आपको भी सीबीआई ने क्या कहा, अभी कोई केस नहीं बनता, है। करेक्ट नहीं बनता, ऐसा बोला उन्होंने। हाँ, मेरी समझ में गलत बोला, मेरी समझ में गलत बोला। और क्यों बोला आपको भी मालूम है, अडानी जी ने खरीद लिया तो सीबीआई का केस अपने आप बंद हो गया। हाँ बोलिए ना सर। इससे क्या मतलब, तो अडानी जी का इंतजार कर रहे थे, खरीदा अडानी जी? और क्या, अडानी जी और क्या, और किसका इंतजार कर रहे थे? अडानी जी एनडीटीवी खरीदे इसलिए इंतजार कर रहे थे क्या? करेक्ट, ये गलत है यहाँ पे, बिल्कुल ये गलत चीज ना सर, यही ये फैक्ट है। गलत है या गलत है या ठीक है, मुझे सबके पास सीबीआई आ जाएगी और अपने अपना घर भेज दें, बिल्कुल केस वापस ले लें, घर के भी बेचा। अभी तक तो हुआ है सर, अभी तक तो हुआ है, देश में माफिया राज हो गया ना, अभी तक तो हुआ है। कोई अपराध किया, सुनिए सर बजाज जी, प्रदीप जी, अगर प्रणव राय उनकी पत्नी ने कोई अपराध किया तो अपराध कभी खत्म नहीं होता। अपराध किया, हमने दुकान ही बेच दी तो दुकान में अगर मैं चोरी सर पढ़ लो केस, तो अपराध किया है, अपराध किया है, पढ़ लो केस। एनीवे आप कुछ बोल रहे थे, किया है तो वो केस खत्म नहीं हो सकता सर। सर आगे बढ़िए ना, सबूत ही नहीं मिला इसके। सर कोई भी अपील में जा सकता है उनके खिलाफ, लेकिन आप बोलिए ना आगे। मैं दूसरी बात पे आ रहा हूँ, बोलिए ना सर, बोलिए। सर अभी आपने कहा जीडीपी इतनी बढ़ गई, बहुत हो गया, एक्सपोर्ट बहुत बढ़िया सुन के सर हमें बड़ा अच्छा। लेकिन 2014 से पहले न जीडीपी ज्यादा थी न निर्यात ज्यादा हो रहा था, लेकिन साहब 50 रुपए में हमको पेट्रोल मिल रहा था, 450 500 रुपए हमको गैस मिल रही थी। करेक्ट। और हमारी जो डॉलर जो गिर रहा है इसमें 90 95 रुपए पहुंच गया है, वो साहब 50 रुपए था। क्यों था सर ये? अगर इतनी हमारी इनकम बढ़ गई है तो ये महंगाई क्यों है इस देश में? करेक्ट, ये बेरोजगारी क्यों इस देश में? दुरुस्त बात है, बिल्कुल। देखिए बिल्कुल मैं बात कह रहा हूँ, देखिए आपने कहा जीडीपी बढ़ गई, निर्यात अच्छा हो रहा है, जी बिल्कुल, बिल्कुल अमेरिका राष्ट्रपति की ऐसी पैसी कोई उससे मतलब नहीं है, तो भैया ये सब क्यों हो रहा है? अब आप कह रहे हैं सब क्रिकेट मैच कराते समय विपक्ष ने पूरा विरोध किया, लेकिन क्लीन चिट किसने दी पाकिस्तान को? हमने नहीं दी, विपक्ष ने नहीं दी। क्लियर क्लीन चिट किसने दी? एनडीए के माननीय प्रवक्ताओं ने दी कि साहब क्रिकेट मैच होगा, समीर बागली साहब हमारे से डिबेट में थे, वो साहब जीतेगा तो उनका मनोबल डाउन हो जाएगा। मनोबल डाउन क्या हो गया? तो ऑस्ट्रेलिया तक में घुस गए जाके। तो ये चीजें जो हो रही है, अब कहते साहब 24 घंटे प्रधानमंत्री जी रात दिन एक किए पड़े हैं और डॉलर के दाम 95 रुपए पहुंच रहा था। महंगाई सर, महंगाई बढ़ती चली जा रही, बेरोजगारी बढ़ती चली, 95 हो गया, 90 हुआ, डीजल पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर हम ले रहे हैं। तो भैया 8 घंटे काम करें हमारे प्रधानमंत्री जी, मेरा उनसे वो है, लेकिन डॉलर के दाम जो गिर रहे हैं उसको ठीक करें, जो पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं उनको ठीक करें, जो हमारी गैस एलपीजी के दाम बढ़ गए उसको ठीक करें। अब वो 8 घंटे काम करें, वो भैया 20-25 घंटे काम ना करें, नहीं चाहता कोई भारतीय उनसे काम कराना। तो मैं ये कह रहा था, अब एसआईआर वाली बात सुनिए सर, एसआईआर वाला जो हो रहा है, जो हमें उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया, उसमें 2003 की वोटर लिस्ट मांगी जा रही थी। 2003 की वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आप वोटर में, तो आप इसमें आएंगे। 22 साल पहले की वोटर लिस्ट में न, माना कि कोई 2003 के बाद लखनऊ रहने आया या सीतापुर रहने आया और उसका 2003 में नाम नहीं है, तो क्या होगा सर? ये वो तो गया काम से, फिर उसका तो नाम ही नहीं चढ़ पाएगा। तो ये मतलब कहने का ये है कि एसआईआर के जो भी है आप जो भी कराइए, लेकिन 2003 की वोटर लिस्ट में अगर संजय द्विवेदी का नाम नहीं है, हमारे पिताजी का नाम नहीं है, तो मैं एलिजिबल नहीं हूँ इस बार जो हमारी एसआईआर जो जांच कर रही है वोटर लिस्ट नाम डालने के लिए, उसमें एलिजिबल नहीं है। आई डाउट इट। द्विवेदी जी बात ये, द्विवेदी जी मैं आप सर जो पैसे की बात कर रहे थे, कांग्रेस के पास तो इतना पैसा है कि 15-20 करोड़ लगा के उन्होंने दिल्ली में इतनी बड़ा जलसा कर लिया सर। हाँ, मुकेश गांधी जी कह रहे थे चमचागिरी भी हद है, मतलब चमचागिरी करते करते इतना ज्यादा डूब जाते हैं कि जिसकी हद नहीं। अरे भैया मैं बता दूं आपको, भारतीय जनता पार्टी अकाउंट में 2014 में 300 करोड़ रुपए थे, 300 करोड़ रुपए, और कांग्रेस अकाउंट में होंगे 150 200 करोड़ रुपए थे। ठीक, कोई बात नहीं, 2014 तक उनकी सरकार थी। अब आप आइए 2019 में 3000 करोड़ से ऊपर उनके अकाउंट में पैसा है, भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में। कांग्रेस अकाउंट में कितना पैसा देख लीजिए। इसके बाद आइए 2025 या 2024 में उनके अकाउंट में 10,000 करोड़ से ज्यादा पैसा है बीजेपी अकाउंट में, और कांग्रेस अकाउंट में कितना पैसा है? 130 करोड़ रुपए।
तो इसके बाद आप आइए जो अभी बने हैं, जो जिसमें 75% पैसा लिया गया है, नाम देखिए मैं भूला, में नाम याद आ जाएगा। जब इतना पैसा आखिरकार इन्होंने डंप अपने यहाँ कर लिया तो महंगाई बेरोजगारी तो बढ़ेगी सर, क्यों नहीं बढ़ेगी? इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में 70% बीप वाले भी पैसा दे रहे हैं, जितने और लोग हैं वो वित्त मंत्री खुद उसमें इन्वॉल्व है। मैं नहीं जा रहा हूँ वित्त मंत्री इन्वॉल्व है, ये हमारी कोर्ट ने कहा कि इनका नाम दर्ज होना चाहिए वित्त मंत्री जी का, इन पर एफआईआर। वो अलग बात है, हाईकोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, कुछ भी कराओ, वो अलग मैटर, लेकिन वित्त मंत्री के नाम एफआईआर हुई तो इनका पूरा कुनबा लड़ा हुआ है। 10,000 करोड़ वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में कितने हजार करोड़ है? 70% टोटल, 70 से 80% इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में। इतना पैसा अगर आप डंप कर लेंगे, अब अडानी अंबानी उनकी तो बात छोड़ दीजिए, आप जितने भी लोग हैं उनकी तो बातें छोड़ दीजिए। आप जब आपके अकाउंट में इतना पैसा डंप है तो आप चुनाव खरीदेंगे, आप विधायक खरीदेंगे, आप पार्टियां तोड़ेंगे, आप सब कुछ आप कर सकते हैं। अब तो भैया कांग्रेस जो है 20 करोड़ रुपए कहाँ खर्च कर देगी रैली में? बस 123 खर्च करने के लिए 133 करोड़। द्विवेदी जी, बट क्या उद्धव ठाकरे जी आरएसएस आइडियोलॉजी से बहुत दूर चला गया? दैट्स व्हाट एकनाथ शिंदे जी तब आरएसएस के हेडक्वार्टर्स के प्रेमाइसेस पर गए नागपुर में, उन्होंने कहा कि शिवसेना और आरएसएस के आइडियोलॉजी बहुत मिलता जुलता है ये, मगर उद्धव जी एक व्यक्ति थे जो घर के बाहर नहीं। तो किस प्रकार से देखते हो, क्या एकनाथ शिंदे जी सही कह रहे हैं? आरएसएस की आइडियोलॉजी है क्या सर? मैं तो 30 साल नहीं जान पाया था, मैं तो 30 साल उनके संग में रहा। उनकी आइडियोलॉजी है क्या सर? एक आध उदाहरण मत दे दीजिए। वहां गए थे, वहां भूकंप आया तो वहां लूटपाट करने गए थे, उनकी आइडियोलॉजी क्या है सर? मैं तो आता नहीं जान पाया आइडियोलॉजी। उनकी आइडियोलॉजी कभी मुसलमानों को सहयोग करने लगते हैं, कभी मुसलमानों को दूर जानते हैं, कभी ये काम किया है क्या? सुन लीजिए, मत करो, मैं आपसे बोला नहीं। हाँ अरे बोला बीच में बोलना ही बकवास करते हो भाई, ठाकरे जी क्लियर कट दी, राष्ट्रीय हिंदुत्व और देश की रक्षा। उन्होंने पार्टी नाम नहीं दिया, उन्होंने पार्टी का नाम रखा 1966 में, तो उन्होंने सेना रखा। क्यों? पार्टी में तो आपकी कोई भी चीज हो सकती है सर। वो बाला साहब ठाकरे जी की थी, उद्धव जी की नहीं है। सेना बाला साहब ठाकरे जी की है, उद्धव की नहीं है। शिवसेना एक सेना की मौला सेना है, जिसमें जो है एकनाथ शिंदे जैसे गद्दार, ये गद्दार लोग वो नहीं है, जो अपना फायदा देखने गद्दार वो नहीं है। शिंदे जी को गद्दार मत कहना। मुख्यमंत्री जितना उनको गद्दार कहेंगे उतना उनका वोटिंग राइट समझते जा सकते हैं, लेकिन जो हिंदू शिवसैनिक है वो गद्दार नहीं है। वो चाहे बिल्कुल जो बाला साहब ठाकरे का उद्देश्य था वही आज इनका उद्देश्य उद्धव ठाकरे का। हमने आज कांग्रेस से गठबंधन किया तो आप कह दीजिए कांग्रेस राष्ट्र विरोधी पार्टी है, आप बता दीजिए, बैन लगा दीजिए कांग्रेस में। एनसीपी जिसकी आप विरोध करते थे, चक्की पी सिंह। बट क्या बाला साहब ठाकरे जी इम्पीचमेंट मोशन को साइन करते थे? द्विवेदी जी ये सब पूछ रहे हैं आपको प्रश्न, क्या बाला साहब ठाकरे जी क्या इम्पीचमेंट मोशन साइन करता वो जज के खिलाफ तमिलनाडु में, जिसने कहा कि मुरुगन टेंपल में जाके आप दीप जला सकते हो? क्या बाला साहब ठाकरे जी के कोई भी आदमी जाके साइन करता? देखिए प्रदीप जी हर चीज को हिंदू मुस्लिम मत बनाइए। हर चीज को उन्होंने क्यों सिग्नेचर किए उसमें मेरे पास कॉपी नहीं, मैं पढ़ के बता देता आपको। उन्होंने क्यों सिग्नेचर किए क्यों नहीं किए ये अलग बात है, लेकिन हर चीज का हिंदू मुस्लिम राइट नहीं हो सकता कि हम अगर हमने सिग्नेचर कर दिए तो हम हिंदू विरोधी हैं। मतलब जो बीजेपी पैदा करना चाह रही है, नहीं हम अगर हैं इनके विरोधी हैं तो हम हिंदू विरोधी हो गए। अगर मैं हिंदू विरोधी हो गया इसके बारे में उनको शर्म आनी चाहिए। नहीं, शर्म आपको आनी चाहिए जो आप इस तरह की बातचीत करते हैं। इतनी चर्चा आनी चाहिए, भारतीय मौलाओं की पार्टी करना चाहिए आपको। जो महंगाई भी कम कर पा रहे, डॉलर का काम कर रहे, डॉलर गिरते हुए डॉलर ठीक नहीं कर पा रहे, बेरोजगारी कम नहीं कर पा रहे, अरे शर्म आपको आनी चाहिए। भ्रष्टाचार
नारा लगाने वाली पहले हिंदुत्व के और विचारों को भ्रष्टाचारी को स्वीकार करो। संग रखे हुए और भ्रष्टाचार का नारा लगाने वाली सामने पार्टी साइन किया और उसका संग रखे हमारी महंगाई का बातचीत विरोध करने करो। वाली पार्टी और महंगाई बढ़ाए हुए बातचीत करो, पेट्रोल डीजल का विरोध करने वाली सड़कों पर तांडव करने वाली पार्टी आज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए हुए रसोई गैस के लिए आपकी बाकी सब नेत्री आपके राजनाथ सिंह द्विवेदी सड़कों द्विवेदी जी, पर बाकी सब से पूछते नहीं आया बाकी साहब राहुल गांधी जी ने मोहन भागवत जी का आलोचना किया। राहुल गांधी जी ने कल कहा कि मोहन भागवत जी को सत्ता ओवर सत्य से ज्यादा सत्ता प्यारा है और लगातार और इम्पीचमेंट में भी कही है कुछ ना कुछ जो द्विवेदी जी कह रहे थे। बोलिए बाकरे साहब। प्रदीप जी, मैं संजय भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे बीच में ना बोले। मैं वो जब बोल रहे थे मैंने एक शब्द नहीं बोला है। नहीं करेंगे। मेरी बात अभी तो कौन बीच में बोल रहा था बीच में कौन बोल रहा था मुकेश गांधी जी बोल रहे थे। मुकेश गांधी जी कौन बोल रहे थे, बोल मैं रहे नहीं बोल थे रहा। उनको भी समझाइए चीज कि अगर मैं बोल रहा हूँ तो ना बोले वो बोले उनको भी बोल देंगे भाई हम तो 40 मिनट बातचीत का देखिए, आप लोग की बातचीत का सर, आप भी 13 मिनट तक बोल चुके हैं। कमी नहीं है। अरे राहुल गांधी जी आज की डेट में भाई, सुनिए। आपके नेता हैं संजय भाई सुनिए, संसद में नेता हैं आपके अभिनेता है, अभिनेता। राजीव गांधी संजय भाई सुनिए, आप मेरी बात द्विवेदी जी सुनिए, पूरी बात उनको सुनिए। बोलने दो ना। मुकेश गांधी जी ने बोले कि आपके बीच में नहीं बोलेंगे अभी। बोले बाकरे साहब बोलिए। संजय भाई, पहले तो आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में अपशब्द बोलने पे ये चैनल पे माफी मांगनी चाहिए। नहीं, मैंने कोई अपशब्द नहीं बोला। आपकी पार्टी मैंने बाला कोई साहब अपशब्द ठाकरे नहीं साहब की बोला। पार्टी थी। मैंने जनाब कहा, जनाब मैंने अपनी आप बीच में मत बोलिए। मैंने आप बीच में कोई मत बोलिए। नहीं बोला। आप बीच में मत बोलिए। राजीव जी देखिए, ये द्विवेदी गलत जी सुनिए ना। ये बात अपनी द्विवेदी जी आप संजय उसके बाद बोलिए ना। एक है। मिनट। द्विवेदी जी आप बीच में मत बोलिए। संजय अभी द्विवेदी जी, नहीं बिल्कुल ये बात संजय द्विवेदी जी आपका चैनल है। आरएसएस के खिलाफ अरे संजय द्विवेदी जी आपका द्विवेदी जी चैनल सुनने है। की आदत रखिए। अभी संजय द्विवेदी जी आपका चैनल है। एक मिनट बाकरे साहब 1 सेकंड सर। संजय द्विवेदी जी सादर बिल्कुल रिस्पेक्ट आपकी रखते हुए आपका चैनल है। जैसे ही बाकरे साहब बोलना बंद करें आप जवाब दीजिए। नहीं मैंने नो क्या प्रॉब्लम सुन लीजिए सर नो प्रॉब्लम सर, मैं समझ गया। आपने ये कहा सर, आपने ये कहा आरएसएस की आइडियोलॉजी है क्या, ऐसा आपने मैंने बोला। पूछा भाई। ऐसा आपने बोला तो समीर बाकरे जी को जवाब देने दीजिए ना। ये तो ना कहें हमने बेहतर हाँ तो प्लीज उनको जवाब देने दीजिए। सर आप भी 15 मिनट बोल चुके हैं वैसे, बाय द वे ये भी आपको बता दूं। अच्छा समीर बाकरे जी अब आप बोलें सर प्लीज। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझने की ना औकात उद्धव ठाकरे जी की है, ना राहुल गांधी जी की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की क्या आइडियोलॉजी है, आज पूरे राष्ट्र निर्माण, व्यक्ति निर्माण और सब जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग आज स्वयंसेवक करके काम कर रहे हैं। और मैं तो पूछना चाहता हूं जनाब उद्धव ठाकरे जी के पार्टी के प्रवक्ता संजय भाई से कि आपने हिंदुत्व का एजेंडा क्यों छोड़ा। आपके जो अरविंद सावंत है उनको तो बोलना नहीं आ रहा था कि आपने साइन क्यों किया। इतने बड़े सांसद है, आपने विदाउट देखे वो दीपम के इसमें कैसे साइन कर दिया। आपने कांग्रेस पार्टी जो बाला साहब ठाकरे साहब ने बोला था कि बंद कर दूंगा मैं अगर मेरी कांग्रेस बन गई, तो उसके दामन में जाके कैसे बैठे। तो आपको शर्म आनी चाहिए। गद्दारी एकनाथ शिंदे साहब ने नहीं की, गद्दारी उद्धव ठाकरे साहब ने की है। गद्दारी उद्धव ठाकरे साहब ने की है, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी से की है। और आप देखिए बीएमसी में भी देखिए आपकी हालत क्या होने वाली है। जवाब दे दूं देखिए संजय भाई, आपको बीच में बोलने संजय जी आप उनको बोलने दीजिए। आप डर क्यों रहे, उनको बोलने दीजिए। डर क्यों रहे आप सच्चाई क्यों नहीं सुनना चाहते। द्विवेदी जी आप उनको बोलने दीजिए ना इनकी जवाब सर, दिस इज नॉट आप करेक्ट। सच्चाई क्यों नहीं सुनना चाहते संजय भाई। उसके बाद आप बोलिए ना संजय जी, उसके बाद बोलिए ना। आप क्या बोल रहे हैं सर। ऑफ कोर्स आप बोलिए ना। आप समीर बाकरे जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए ना प्लीज। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक हो, ये राष्ट्रीयता की बात करते हैं। और अगर वो दीपम के केस में गलत हो रहा है तो आपको बोलना पड़ेगा। हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, वहां के मुस्लिमों ने भी ऑब्जेक्ट नहीं किया। आपके पार्टी के सांसद उस पर जाके साइन कर रहे हैं। थोड़ा उस विषय में अध्ययन कीजिए, आपकी पार्टी में अध्ययन की कमी है। और उद्धव ठाकरे साहब जो जनाब बन के घूम रहे हैं, उनका क्या इनकम का सोर्स है इतना बड़ा, इतनी बड़ी मातोश्री उन्होंने खड़ी की। क्या बिजनेस है उद्धव ठाकरे साहब का। जो आप संघ के बारे में गलत तुम्हारा क्या सोर्स है भाई, गलत बोल रहे हैं। बीजेपी क्या सोर्स है।
अरे भाई साहब, संघ के बारे में आप जो गलत बोल रहे हैं ना, आपकी क्या इनकम की सोर्स है आप बताइए। हमारा पूरा जो भी डोनेशन है वो ऑडिटेड है, ऐसा कुछ नहीं है कि गलत छुपा हुआ है। और अगर आप देखिए आपको कैसी, अरे लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये बनती है, लेकिन बाकरे साहब, समीर बाकरे साहब और संजय द्विवेदी जी और मुकेश गांधी साहब, ये तो बनता है जब उद्धव ठाकरे जी से पूछा गया था, जब उद्धव ठाकरे जी से पूछा गया कि भैया आपने इस पे कैसे साइन कर दिया, ये तो टोटली हिंदू विरोधी काम है, ये जो डीएमके और कांग्रेस कर रही है, आपने कैसे साइन कर दिया इस पे? तो उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। उसका जवाब उन्होंने दिया कि आपके पास किरण रिजिजू कैसे है जो गाय खाता है, बीफ खाता है। सर ये जवाब थोड़ी हुआ, सीधी सादी बात है, आपने कैसे साइन कर दिया? सर कार्तिकेय के दीपम को आज अगर मदुराई हिल पर हम लोग नहीं जलाएंगे तो कहां जलाएंगे सर? कराची में जलाएंगे क्या? इस्लामाबाद में जलाएंगे? पिछले 1500 साल की ये परंपरा है। और आज जो सिकंदर दरगाह है उसके जो सजदा नशीन है वो कहते हैं हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मदुराई के जो मुसलमान हैं वो कहते हैं हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन सिर्फ डीएमके को है। डीएमके इतना डर गई है मुरुगन के द्वीप से कि दे वांटेड टू बी स्टॉप्ड। और अगर किसी जज ने, हाई कोर्ट के जज ने, मैं आपके पास ही आ रहा हूं बाकरे साहब, आप अपना काम पूरा करें, अगर उसने 2 बार ऑर्डर दिया है, दो रेमेडी लाइज इन द सुप्रीम कोर्ट, इंस्टेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट यू हैव गॉन इन फॉर इंपीचमेंट। अब आप बोले सर बाकरे साहब, नहीं 1 मिनट सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। लेट समीर बाकरे साहब फिनिश सर, लेट समीर बाकरे साहब फिनिश सर, लेट समीर बाकरे साहब फिनिश सर, मुझे बोलने दीजिए सर समीर बाकरे जी को खत्म करने दीजिए। नहीं सर, ऐसा देखिए, बोलिए बोलिए बोलिए, उसके बाद समीर बाकरे जी मैं आपके पास आता हूं। अब आप बोलिए। गांधी जब प्रधानमंत्री बनने जा रही थी, माननीय बाला साहब ठाकरे ने इंदिरा गांधी का समर्थन किया था, उनके लिए प्रचार भी किया, उनके लिए पार्टी, उनके लिए अरे उसका कार्तिकेय दीपम के साथ क्या कनेक्शन है? समर्थन किया था, समर्थन किया था। सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रही थी, इसलिए उन्होंने कहा कि शिवसेना को कांग्रेस नहीं बनने दूंगा। तो शिवसेना कांग्रेस नहीं बनी मानव सर, मैं आपको, सर हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे आपने पहले रामविलास पासवान जी भारत गठबंधन किया, सर हम लोग बात कर रहे हैं कार्तिकेय दीपम के बारे में, गठबंधन किया, हम लोग बात कर रहे हैं कार्तिकेय दीपम के बारे में। सर बिल्कुल मान्यवर, हम लोग बात कर रहे हैं मदुराई हिल के ऊपर, मदुराई हिल के ऊपर एक बहुत बड़ा दीप चलता है जिससे रोशनी पूरी मदुराई देख सकती है। उस पे कोर्ट ऑर्डर आया, उस पे डीएमके वाले इतने डर गए कि उन्होंने एक इंपीचमेंट मोशन लेकर के आए लोकसभा में। इंपीचमेंट मोशन लाए जी, और जिसके ऊपर उद्धव ठाकरे सेना के लोगों ने साइन कर दिया। और सवाल ये है, आप कहां बाला साहब के पास जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? मेरी बात सुन लीजिए, क्यों साइन किया? सुप्रीम कोर्ट का साइन किया? सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली मुख्यमंत्री को राज्यपाल के There you go again. So we are talking about Tamil Nadu. We are talking about Tamil Nadu, sir. We are talking about Tamil Nadu. Why didn't you go to the Supreme Court in appeal? बजाज जी सुन लीजिए, बजाज जी, तो इसमें दिल्ली कहां से आ गया? दिल्ली का मुख्यमंत्री कहां से आ गया? सुन तो लीजिए पहले ना, क्यों आ गया दिल्ली के मुख्यमंत्री? मैं बता तो दूं आपको। अरे यार क्या बोल रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को, उनको पूरे अधिकार दे दिए जो राज्यपाल जी के पास थे। ये अध्यादेश लाके इन्होंने क्या किया? अध्यादेश लाकर इन्होंने टोटल राज्यपाल को पुनः अधिकार दे दिए। अब अगर जज ने इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट, सॉरी नो सर, द्विवेदी जी आई डोंट एग्री। आपका सुन लिया, बाकरे साहब का सुन लिया ना। मिस्टर बाकरे प्लीज फिनिश, मिस्टर बाकरे प्लीज फिनिश। जो अगर डीएमके तो इसलिए एक मिनट द्विवेदी जी, मैं आप ही की बात करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी दिल्ली के मुख्यमंत्री के पक्ष में, उसको उल्टा कर दिया लोकसभा ने, ठीक है? तो जहां से आपको इंसाफ मिला यानी सुप्रीम कोर्ट से, वहां आप नहीं जाएंगे। जहां पर नाइंसाफी हुई यानी लोकसभा, वहां जाएंगे आप।
इम्पीचमेंट मोशन लेने के लिए। तो सर वाह, क्या बुराई क्या है? बात है इसमें सर, क्या क्या बात है। बाकी अरे सब द्विवेदी जी कुछ तो सोचिए, इसमें क्या बोल रहे हैं भाई आप? देखिए, बाकी सबको- DMK ने क्यों अरे लाया क्या है? बोल रहे हैं आप, ये सर? DMK अरे किसी द्विवेदी जी, प्रवक्ता बाकी को सबको बुलाइए। बोलने दो। एक मिनट, भैया जी सुन let us लीजिए, finish। आप DMK क्यों लाई मोशन होता है उनके जज ने, इसके अलावा तमाम ऐसे जो दिए हो तो पहले लाए, तो पहले लाना चाहिए था, अभी क्यों DMK लेके तैयार आए? ना हो, DMK से पूछ लीजिए। तो पहले लाना चाहिए था, तो आपने उसमें साइन कैसे कर दिया? राजीव जी, I think it- अच्छा चला, आपने बोल दिया ना। बाकी- समीर बागर साहब प्लीज फिनिश सर, प्लीज, दिस इज अ स्ट्रेंज आर्गुमेंट, प्लीज लेट मी नो, बोलिए। देखिए राजीव जी, जो अंधेरे से नहीं डरता वो दीप जलाता है, जो संघर्ष से नहीं डरता वो इतिहास बनाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग दीप भी जलाएंगे, हम इतिहास भी रचेंगे, और अगर देश में हिंदू संस्कृति के खिलाफ और कोई गलत भारतीय परंपरा के खिलाफ अगर कोई गलत करेगा तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी। और हमारा कोई जंगल का कानून नहीं है, हाईकोर्ट का डिसीजन आया है। द्विवेदी जी को मैं आह्वान करता हूं कि अगर इनको ये मंजूर नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए। वैसे भी याकूब मेमन की फांसी बचाने के लिए आपके दोस्त लोग रात को 2:30 बजे सुप्रीम कोर्ट गए। तो अगर दीप जलाने में आपको इतनी तकलीफ है तो आप आने वाले दिवाली में आप दिवाली मनाना बंद कीजिए। आपको दीप जलाने से इतनी तकलीफ है, आपको दीप जलाने से इतनी तकलीफ है तो आप दीप जलाना बंद कर दीजिए। संजय भाई आपके ऊपर चिल्लाना नहीं चाहता, आप उम्र में बड़े हैं, चिल्लाना नहीं चाहता मैं, लेकिन आप चुप बैठिए, अभी आप चुप रहिए, प्लीज चुप रहिए। लेकिन संजय द्विवेदी जी, दिस इज अनफेयर। संजय द्विवेदी जी, हर एक ने आपको सुना, आपने आर्गुमेंट पेश करी सर, आपने आर्गुमेंट पेश करी। संजय द्विवेदी जी, आपने आर्गुमेंट पेश करी जो हर एक ने सुनी। अब आप सुनने का भी जिगरा रखिए, मैं जिगरा है, साहस रखिए सर, साहस रखिए सर, थोड़ा सहजता से सब्र से सुनिए। नो सर, दिस इज अनफेयर बीजेपी आतंकवादी सर, दिस इज अनफेयर, दिस इज एब्सोल्युटली अनफेयर सर। अगर आप आतंकवादियों की बात कर रहे हैं तो यासीन मलिक जैसे आतंकवादी से कौन मिला था? डॉक्टर मनमोहन सिंह मिले थे ना सर, जिनके साथ आप खड़े हैं अभी। यासीन मलिक को मनमोहन सिंह के पास लोग लेके गए थे सर। क्या बात कर रहे हैं आप? अगर मेरा मुंह मत खुलवाइए अभी, कहां पर क्या क्या हुआ है और आज भी क्या क्या हो रहा है। देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आई कैन नॉट से इन पब्लिक, बट लेट मिस्टर समीर भाकरे फिनिश सर। एवरीबॉडी हैज हर्ड यू, प्लीज समीर भाकरे जी, आप प्लीज फिनिश योर आर्गुमेंट सर। देखिए राजीव जी, जो दीपम जगह है उसमें तमिल संगम की 2000 साल की इतिहास है। जो पिलर पे दीप जलाए वो 400 साल पुराना है। तमिलनाडु सरकार के आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी की बुक है जिसमें उन्होंने एक्नॉलेज किया है। जो दीपम का स्तंभ है वो मंदिर के इसमें है। वहां जो दरगाह बना है वहां हिंदू कोई दरगाह पे ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे, वहां के मुसलमान दीप जलाने में ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे। देयर इज ओनली वन डिस्प्यूट कि हिंदुओं ने कहा है कि ये जो पहाड़ी है ये हमारे पुराने वक्त से है तो यहाँ एनिमल सैक्रिफाइस नहीं होनी चाहिए। इतना डिस्प्यूट है। और ये दीपम का डिस्प्यूट तो डीएमके ने खड़ा किया है। मैं तो अगले वक्त चाहूंगा कि मुंबई में अगर दिवाली पहाड़ कार्यक्रम हो तो उद्धव ठाकरे साहब की पार्टी और उनके सभी लीडर्स को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने दीप जलाने से, और वो भी मंदिर में दीप जलाने से मना किया है। शर्म आनी चाहिए उद्धव ठाकरे जी को और उनके पार्टी के। और अरविंद सावंत जी साहब का मैंने उस दिन का 15 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा नागपुर अधिवेशन में, मैं बाजू में खड़ा था, तो उन्होंने कहा उनको जवाब देना नहीं बन रहा था, वो पत्रकारों पे आरोप कर रहे थे। तो अगर कोई चीज समझ में नहीं आती ना संजय भाई तो आप साइन मत कीजिए, लेकिन हिंदू संस्कृति के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ ऑलरेडी बहुत कर चुके हैं। बाला साहब, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की आत्मा रो रही होंगी कि ये कहा मैंने उद्धव को मैंने पार्टी का अध्यक्ष बनाया। उससे अच्छा पार्टी बंद कर देनी चाहिए थी, उससे अच्छा पार्टी बंद कर देनी चाहिए थी। के खिलाफ मोदी ने पार्टी तोड़ दी, वो बाला ठाकरे तो रो रही होगी आत्मा। भारत रत्न भारत रत्न दे पा रहे हैं, भारत रत्न दीजिए बाला साहब को, वीर सावरकर भारत रत्न क्यों नहीं दे पा रहे हैं? द्विवेदी जी सुनिए, भारत रत्न दीजिए ना, द्विवेदी जी 2 मिनट सुनिए। बाला साहब ठाकरे को 2 मिनट रुकिए ना, अब बोले। भारत रत्न क्यों नहीं दे पा रहे हैं? मेन राहुल गांधी जी, बिहार में चुनाव जीतने के लिए भाकर साहब, राहुल गांधी जी ने जो आरोप मोहन भागवत जी पे लगा, ये पहली बार डायरेक्ट अटैक मोहन भागवत जी पे लगा कि मोहन भागवत जी को सत्ता प्यारा है, सत्य नहीं।
Now, how are you going to respond to that? Because first time Rahul Gandhi is attacking Mohan Bhagwat ji direct. देखिए प्रदीप जी, राहुल गांधी की मैंने पहले भी कहा औकात नहीं है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझने की, और संघ के प्रचारक हो चाहे हमारे परम पूजनीय डॉक्टर मोहन जी भागवत हो, ये पूरी सब अपना छोड़ के निकले, ना इनका परिवार है ना इनका घर है ना कुछ है, ये मतलब अलग अलग जगह में प्रचारक करके रहते। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक आपकी जो जवाहरलाल नेहरू थे वो हरा नहीं पाए, इंदिरा गांधी हरा नहीं पाई, राजीव गांधी हरा नहीं पाए, सोनिया गांधी हरा नहीं पाई, और ये बच्चा जो राहुल गांधी है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में बोल रहा है। इसको कोई ये समझ नहीं है राष्ट्रीयता की, और ये लेफ्टिस्ट हो चुका है। योगेंद्र यादव जैसे इसके सलाहकार है। तो देश में लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा दे रही है कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी आज अनफॉर्चुनेटली जो कुछ सालों पहले एक गवर्नेंस की पार्टी हुआ करती थी, इनमें बड़े कद्दावर नेता हुआ करते थे, अभी ये लेफ्ट के जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स है उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। मुझे तो मतलब क्या बोले राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी पे बोलना भी, यानी मैं ऐसा समझता हूँ कि चाहे वो इलेक्शन कमीशन का मैटर हो चाहे एसआईआर का मैटर हो, हर जगह उनको मुंह की खानी पड़ी है। अगर इनके पास इतने प्रूफ है तो जाए कोर्ट में, जाए सुप्रीम कोर्ट में, तो क्यों नहीं जाते कोर्ट में? बट व्हाट आई कांट अंडरस्टैंड इज, समीर बागरे साहब, मुझे एक चीज मेरी समझ के बाहर है जहां तक डीएमके का सवाल है। व्हाई कांट दे गो टू द सुप्रीम कोर्ट, लेट द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट देयर पिटिशन, आफ्टर दैट यू गो एंड फाइल अ इंपीचमेंट मोशन और व्हाटएवर इट इज यू वांट टू डू। जो आपको करना है आप करिए, उसके बाद करिए ना, उसके पहले करने का क्या मतलब है? आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने पहले भी ऐसे ऑर्डर्स दिए हैं। अरे तो क्या हो गया, हमारे पास ना जाने कितने ऐसे लोग थे। फॉर एग्जांपल आई स्टिल रिमेंबर जस्टिस डी.ए. देसाई who later on became chairman of the law commission. He used to say forget the law. Actually he used a different word which starts with an F. He gave me an interview. He said whatever F you, whatever the law, I will stand with workers, I am not concerned with the law. He was a serving justice of the Supreme Court. He used to say that at that time. My point is, if you are aggrieved with a particular judgment, the remedy lies with the Supreme Court. And if you are aggrieved by a judgment of the Supreme Court, the remedy lies either in a curative petition or in a constitutional petition to be heard by a constitutional bench consisting of minimum 5 judges. सीधी बात है sir, the law is very clear. My point is, why don't they do that? Because DMK is really scared right now. Let's be very clear. और उसमें very frankly speaking, उद्धव जी is a very dear friend of mine. उद्धव जी को ट्रैप कर दिया गया है सर। उद्धव जी को मालूम नहीं है क्या हो रहा है उनके साथ। मैं आपको बोल रहा हूं, दे आर वेरी स्कैर्ड। वो जो तिरुवनंतपुरम में पहली बार ऐसा हुआ है सर 1947 के बाद, केरल में, केरल के किसी भी शहर में, यहां तो कैपिटल में सर बीजेपी का मेयर वो भी केरल में, मतलब इट हैज सेंट शॉकवेव्स इन तमिलनाडु एज वेल। सो मेरा ये कहना है, दे आर ट्राइंग टू प्रिजर्व देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी बाय हुक और बाय क्रुक। किसी भी तरीके से उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कहीं नहीं जानी चाहिए। I want to ask मुकेश गांधी साहब, कल मुकेश गांधी साहब स्पेशली फॉर मुंबई, एकनाथ शिंदे जी ने ऐतिहासिक डिसीजन ले लिया है। उन्होंने कहा ओसी एमनेस्टी स्कीम और पगड़ी जितने भी ऐसे डेवलपमेंट से अगड़ा है पगड़ी स्कीम में। नाउ दैट इज, डोंट यू थिंक इट्स वंडरफुल? This was what the whole state was waiting for a long time, especially Mumbai, because आपका अच्छा नॉलेज है where all these real estate matters are concerned. किस प्रकार से उस को देखते हो मुकेश गांधी साहब? शिंदे जी ने ये जो कल जो अनाउंसमेंट किए परसों जी, वो पगड़ी सिस्टम जो हमारे मुंबई के अंदर इतने पुराने हजारों बिल्डिंग है, पर्टिकुलरली साउथ मुंबई में और कुछ सबर्ब्स के अंदर और थाना में वगैरह जगह पे, पनवेल में भी है, कई जगह पे है। जो पगड़ी के मकान है, पहले इंडिविजुअल ऑनर मकान बनाते थे, पगड़ी पे भाड़े पे देकर के कमाते थे। आज सब बिल्डिंगों की हालत जर्जरित हो गई है। तो उनके लिए जो ये कानून इन्होंने प्रस्तावित किया है, वो कानून का प्रस्तावना होने के बाद में तुरंत ही म्यूनिसिपल इलेक्शन का डेट डिक्लेयर हो गई। तो अभी तो इलेक्शन के बाद में ये एग्जीक्यूट होगा। और ये प्रस्ताव से शिंदे जी ने अपने कार्ड्स को ओपन किया, कार्ड्स को प्ले किया और अभी कार्ड्स को विनिंग में लेके आएंगे, इतना मुझे विश्वास है। दूसरी बात प्रदीप जी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो 1365 माने 136 ईयर्स बिफोर फॉर्म हुई,
1889 में मेरे ख्याल से ये मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का गठन हुआ था। तब भी उसका सूत्र क्या था? धर्मो धर्म रक्षति जयः, धर्म धर्म का रक्षण करता है। अभी कॉर्पोरेशन के अंदर जैसे हमारे हिंदुस्तान में अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है, वैसा हमारे इसमें धर्म, ये जो सूत्र लिखा है, यतो धर्मस्ततो जय, सॉरी, यतो धर्मस्ततो जय, ये लिखने का कारण उस टाइम में क्या होगा, जबकि अंग्रेज शासन के टाइम में मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हुआ। और आज जो इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें भी ये जो उद्धव ठाकरे जी ने जो ब्लास्ट किया और जो मिस्टेक्स की है, और शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी ने जो कार्य किया है, उसमें मुझे लगता है कि यतो धर्मस्ततो जय, जहां सच्चा धर्म है, वो धर्म माने सिर्फ हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म नहीं है, पर धर्म माने वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ वर्शिप, ये तीनों चीजों को मिला के एक धर्म बनता है। वो धर्म का जय होगा जिसका अनुशासन हमारे मुंबई को, मुंबा देवी की नगरी को समृद्ध करेगा। क्या बात है सर। तो ये वेरी गुड, जो शिंदे जी ने बाजी खेली है 20 साल से वो सक्सेसफुल है जी। और ये जो 227 में से शिवसेना को लास्ट ईयर मेरे ख्याल से 84 सीट मिली थी, अभी आने वाले इलेक्शन में इनको 8 सीट भी मिलेगी कि नहीं, ये मुझे डाउट है। लेकिन मुकेश गांधी साहब, एक तो बीएमसी का एक्ट 1888 का है, 1888 का है, ये भी आपको बता दूं, 1888। हाँ जी, हाँ जी। और दूसरी चीज क्या है कि 227 वार्ड जो हैं, अभी तक वोटर्स लिस्ट की जो कंट्रोवर्सी है, अभी तक वो सुलझी नहीं है, वैसी की वैसी है। सब लोग जो है इसी के ऊपर भाई ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, चलो अब क्या है कि चुनाव करना है कर लो, सीधी सादी बात है। एंड बीजेपी, बाय द वे ये भी आपको बता दूं, बीजेपी इज ऑलरेडी रेडी फॉर इट। बीजेपी तैयार है, बीजेपी की लिस्ट भी तैयार है, एक एक चीज तैयार है बीजेपी की, किस पर लड़ना है। अब बाकी सब लोग तो इधर उधर भाग रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि बीजेपी जो 24 घंटे 365 दिन काम करती है चुनाव के लिए, आरएसएस भी उसमें लगी हुई है, विश्व हिंदू परिषद भी लगी हुई है, बजरंग दल भी लगे हुए हैं। अब प्रॉब्लम यहां पर यह आ जाती है, पहले मुझे याद है शिवसेना ऐसी काम करती थी सर, पहले शिवसेना जो थी मुंबई में और पूरे कोंकण में ऐसी काम करती थी बाला साहब ठाकरे के अंडर, जबरदस्त काम लेकिन तब काम किया है सर, लेकिन कॉर्पोरेशन के इलेक्शन अरे सर तब बाला साहब ठाकरे, बाला साहब एक एक आदमी को, एक एक शाखा प्रमुख को बुला करके, अरे सबको जानते थे, रिपोर्टिंग लेते थे और कार्य करते थे। ऐसा आज कुछ नहीं हो रहा है। अरे अजीत जी मुझे कहीं निकलना है, मैं जा रहा हूं सर, आप ही के पास आ रहा हूं। वन फाइनल वर्ड फ्रॉम यू। आई वुड लाइक टू स्टेट ओनली वन थिंग, कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं था, कोई ऐसा शाखा प्रमुख नहीं था जिसको बाला साहब ठाकरे बाय नेम नहीं जानते थे। क्योंकि 1966 से लेकर उनके सबसे पहले रिक्रूट कौन थे? बाला साहब ठाकरे के मनोहर जोशी, ही वाज द फर्स्ट रिक्रूट ऑफ द शिवसेना। वहां से शिवसेना शुरू हुई सर। तो बाला साहब तो एक एक को पहचानते थे, उसकी पूरी फैमिली हिस्ट्री जानते थे। आप समीर बाकी से कुछ ये 10,000 द्विवेदी जी ने जो प्रश्न पूछा, आखिरकार आपको 10,000 करोड़ को छोटा अमाउंट नहीं है बीजेपी के चेस्ट फंड में। यू नो कांग्रेस इज नेक्स्ट 133 और 134 करोड़। तो ये जो इतना डिफरेंशिएशन, इतना डिफरेंट फ्रॉम 133 करोड़ टू 10,000 करोड़, तो प्रश्न उठता ही है ना बकरे साहब, व्हाई योर वॉर चेस्ट इज सो हैवी? 10,000 करोड़। देखिए प्रदीप जी, अगर भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में कोई रकम है तो वो तो ऑडिटेड है ना, इट इज ओपन टू पब्लिक स्क्रूटिनी, इट इज सबमिटेड इन द कोर्ट्स। तो इसमें छुपाने की बात क्या है? मुंबई में जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया इतने सालों में, ये हजारों करोड़ के ऊपर का निकलेगा। भारतीय जनता पार्टी जो है कोई भ्रष्टाचार नहीं करती, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, हमारे यहाँ मेंबरशिप है और पूरा ट्रांसपेरेंट डोनरशिप है। तो इसमें दिक्कत क्या है? अगर हमने डिक्लेयर किए, हमारे यहाँ लोग जैसे ममता बनर्जी के 50-50 करोड़ एक नेता के घर से निकल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। हमारे बैंक अकाउंट में पैसे है, वहां सबको रिसीट दी गई है, इनकम टैक्स की स्क्रूटिनी हो सकती है, जो जो डोनर्स है। उसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर कोई पार्टी को चंदा देना चाहता है, और क्यों नहीं देंगे? अगर देश का विकास कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, तो पब्लिक चाहती है, 140 करोड़ लोग चाहते हैं कि देश का विकास
भारतीय जनता पार्टी अच्छे से करे, इसलिए उसको खिले दिल से मदद भी कर रहे हैं। और हम भी कोई This donation is for security and improvement. ये डोनेशन मिसयूज हो रहा है बाकरे साहब, यही द्विवेदी जी का चार्ज है। आप पार्टी तोड़ने के लिए, सरकार गिराने के लिए ये पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। That is what बहुत it अच्छा is. प्रदीप जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं पूछना चाहता हूँ, जनसंघ हमारा 1951 में बना, भारतीय जनता पार्टी 1980 में हुई, और आज तक भारतीय जनता पार्टी कभी सत्ता के भूख के लिए हमारे पार्टी में कभी कोई एमएलए या कोई नगर सेवक या कोई एमपी छोड़ के गए क्या? बिकॉज वी आर कमिटेड टू द आइडियोलॉजी। Yes. अगर कोई आइडियोलॉजी से कमिटेड है तो आप उसको कुछ नहीं कर सकते। हम लोग, हमारी पार्टी आइडियोलॉजी से कमिटेड है। और जब एकनाथ शिंदे जी को लगा कि उद्धव साहब ने पूरी आइडियोलॉजी हिंदुत्व की छोड़ी है, तब उन्होंने एक बगावत की, और मैं बगावत भी नहीं कहूंगा, वो ओरिजिनल शिवसेना है। बगावत तो इन्होंने की थी 2019 में, गद्दारी बोल सकता हूँ हिंदुत्व से। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो विचारधारा से अड़िग रहेंगे, जो देश हित में बात करेंगे, जो राष्ट्र विकास की बात करेंगे, और जिसके नेताओं का कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, वही पार्टी देश के ऊपर सत्ता में आएगी। और हम खुद को प्रधान सेवक कहते हैं। लेकिन समीर बागरे साहब, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एकनाथ शिंदे जी और अजीत दादा पवार के बारे में ना ही बात करें तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी की केवल 2 सीटें आई थी 1984 में, और दोनों एमपीज भारतीय जनता पार्टी में ही रहे। उनमें से एक तो आज तक है। मेरा यह कहना है 2 आए थे, सिर्फ 2। मैं ये बात कितनी बार बता चुका हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक भी शख्स नहीं था, वर्कर तक नहीं था जो कांग्रेस पार्टी में चला गया हो, नहीं गया। तो सर, दैट इज द कमिटमेंट। सभी वहीं के भाई, सर मैं जानता हूं, सर मैंने काम किया हुआ है वहां पे, मैं जानता हूं ना, मुझे मालूम। सो इट इज सो, बाकी हर जगह पे अगर सत्ता चली जाती है तो लोग भागते हैं इधर से उधर। हाँ, जहां तक आपका सवाल है, आपका ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का भी डर होता है, तो इसलिए भी भागते हैं। द्विवेदी जी, क्या आप सेटिस्फाइड है? बाकरे साहब बोले हमने कभी पैसे का दुरुपयोग नहीं किया। राइट सर, थैंक यू द्विवेदी जी। समीर बाकरे साहब, थैंक यू बाकरे साहब ने कभी, जय सिया राम, जय सिया राम। बीजेपी ने कभी दुरुपयोग नहीं किया फंड्स के, चाहे वो 10,000 करोड़ जो आप बोल रहे हो। बोलिए बोलिए द्विवेदी। 56 साल राज्य किया, जिस पार्टी ने 65 साल राज्य किया, उसके फंड में 133 करोड़ रुपए, और उसको कहते हैं सारे भ्रष्टाचार के जनक है। कांग्रेस पार्टी वाले ने बहुत भ्रष्टाचार किया, और जो 10,000 करोड़ जिनके अकाउंट में, अकाउंट में पैसा है, वो भ्रष्टाचार नहीं करते हैं। जबकि दीप वाली कंपनी से भी पैसा लेते हैं। भाई, वित्त मंत्री का सीधे नाम आया, सब पैसा वसूलने वित्त मंत्री कहाँ से, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो कोर्ट में जो लगा था उसमें ही आया कि साहब इनका इन्वॉल्वमेंट है, उन पर FIR। अब FIR कहाँ गई, क्यों नहीं, वो तो कोर्ट की प्रक्रिया, उसमें तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता हूँ। दूसरी बात, एक बात और कही, एकनाथ शिंदे क्यों चले गए? भाई, एकनाथ शिंदे से ही कहा गया कि आप आइए, चुनाव हमारे हाथ में है, आपको पार्टी और दोनों चीजें आपको दी। आप मुझे एक बात बताइए, आप इतने बड़े पत्रकार, दोनों भाई हैं हमारे, इतने बड़े पत्रकार हैं, 40 साल या 30 साल का आप लोगों का अनुभव है, चुनाव लोग में कभी क्या विधायकों से पार्टी गठबंधन होती है? क्या विधायक अगर चले जाए पार्टी से तो क्या पार्टी टूट जाती है? No. अगर ऐसी बात है, पहली बार हुआ है। चुनाव में जो संविधान बना हुआ चुनाव का, उसकी क्या जरूरत है? पहली बार हुआ है, पहली बार। तब तो सब विधायक बने और पार्टी में रजिस्टर्ड करा ले, तो विधायकों से क्या मतलब मेरा है? फिर पार्टी रजिस्ट्रेशन क्या मतलब है? हम उनके आगे हाथ पैर जोड़ते घूमे कि नहीं साहब हमारा रजिस्टर्ड कर दीजिए। जब हम रजिस्टर्ड करते हैं तो उसमें चुनाव चिन्ह हमारा परिपूर्ण नहीं होता। उसमें कहा जाता है कि 5 से 6% आपके वोट आएंगे प्रदेश में तो आपको प्रदेश स्तरीय बना दिया जाएगा, और 4 प्रदेशों में इतने % वोट आएंगे, इतने MP होंगे, इतने विधायक होंगे, तो आपकी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं जाएगी। तो फिर संविधान में इस देश से मतलब कहां से? ये पहली बार हुआ है, ये चीज समझ नहीं आया। अच्छा, दूसरी बात, अगर मुख्यमंत्री का उनको साथ न दिया होता, जो व्यक्ति 40 विधायक लेके आया और वो मुख्यमंत्री बन गया, अब की 57 विधायक लेके आया और वो मंत्री बन गया, ये क्या मतलब है? सर यहाँ पर एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, दुनिया जान रही है। द्विवेदी जी, एक चीज आप भूल रहे हैं, एक चीज आप भूल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उद्धव ठाकरे जी से कि अगर आप रिजाइन नहीं करते, अगर आपको इन स्पाइट ऑफ द विप, क्योंकि जो अभी उद्धव ठाकरे सेना, पहले तो यूनाइटेड सेना थी, उन्होंने विप इशू की थी कि सब लोगों को उद्धव जी के फेवर में वोट देना है। अब ना जाने किसने एडवाइस किया उद्धव जी को कि आप रिजाइन कर दीजिए,
अगर उन्होंने कहा कि अगर आप फ्लोर ऑफ द हाउस पे अगर आप हार जाते तो हम आपकी सत्ता रेस्टोर कर देते, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सर अब आप बजाज बोले। जी, आज बहुत अच्छी बात है, मैं कहना चाह रहा लेकिन मैंने कहा नहीं बात। नहीं बोलिए बोलिए। मैंने इसलिए नहीं कहा ये बात कि सुप्रीम कोर्ट को मैं नहीं समझ पाया। भाई एडवोकेट भाई प्रदीप जी वो समझ जाए, उन्होंने 12 पॉइंटों में सबके खिलाफ लिखा, चाहे स्पीकर हो, चाहे आपका विधानसभा अध्यक्ष हो, चाहे वो राज्यपाल हो, सबके लिए उन्होंने भीप तक को जो उन्होंने मान लिया कि जो उद्धव ठाकरे ने भीप जारी किया था वो एक्चुअल भीप था, उसी भीप को मानना पड़ेगा। लेकिन ना उन्होंने स्पीकर ने माना, ना किसी ने माना। यहाँ तक कह दिया था इस तरह की कोई भी चीज नहीं हो सकती है। खैर वो अब तो सब डिविजन है, उसमें आदेश आ चुका है, इसलिए हम कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। इस्तीफा नहीं दिया होता तो वो बन जाते। मैं दूसरी बात कहता हूँ सर, एकनाथ शिंदे जब 2019 में इतने राष्ट्रभक्त थे, इतने माननीय बाला साहब ठाकरे के भक्त थे, तो 2019 में जब गठबंधन हो रहा था, जहां वो भी बैठे हुए थे, महाविकास अघाड़ी की मीटिंग चल रही थी, उद्धव जी ने उनका नाम लिया। उद्धव जी ने कहा था हमारे जो मुख्यमंत्री के प्रत्याशी हैं वो एकनाथ शिंदे है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कि मेरी डिबेट हुई थी इन्हीं के विधायक मंत्री से, हमारे आमने सामने डिबेट हुई थी, उसमें उन्होंने स्वीकार बात की थी, चाहिए कहिए तो मैं उसको भेज दूंगा आपके पास। तो उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री के लिए इनका नाम एकनाथ शिंदे का नाम दिया गया था। तब इसके बाद नहीं हुआ कि नाम नहीं उद्धव ठाकरे का बनते तो गठबंधन होगा, बंधन नहीं होगा, ये अलग प्रक्रिया है। ये ऐसा शरद पवार जी ने कहा 2.5 साल बाद जी, ऐसा शरद पवार जी ने कहा था उद्धव जी को कि एकनाथ शिंदे जी बहुत जूनियर हैं, उनकी बात कोई मानेगा नहीं, ऐसा कहा था जी जी। मैं उसी पे आ रहा हूँ सर जी। तो उसमें एकनाथ शिंदे 2000 इतने अच्छे थे, बाला साहब के ठाकरे के भक्त थे, क्योंकि उद्धव ठाकरे को बनाया गया था अकेले नहीं, कोने कमरे में नहीं बनाया गया था। उद्धव ठाकरे को अगर बनाया गया था राष्ट्रीय प्रमुख तो अकेले कमरे में नहीं बैठ के बनाया गया था, बाकायदा रैली में कहा गया था, जहां एकनाथ शिंदे भी शामिल थे। वहां क्यों नहीं इन्होंने बाला साहब ठाकरे का विरोध किया कि साहब उद्धव ठाकरे को नहीं बनने देंगे। 2.5 साल तक आप सरकार में रह के मजा लेते रहे, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, और 2.5 साल बाद आप कह रहे साहब मैं इनके विचारों से नहीं है। क्यों? तब तक मुख्यमंत्री की आपकी बात हो गई, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस तो मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे। आप एंड टाइम उनको मालूम चला कि साहब आप मुख्यमंत्री बनिए तो देवेंद्र फडणवीस जी नाराज हो गए, तो पुरानी बात हो गई ना, नहीं तो बनूंगा। अभी ये बातों का क्या असर है यार? अभी दूसरी अभी बात तो पुरानी बात हो गई ना। मैं मुकेश गांधी से आपसे मैं उसी बात कर रहा हूँ जो वही बात हमारे उन्होंने कही, इसलिए मैं उनको याद दिला रहा हूँ बागले साहब को, फिर वो सुन रहे हैं। तो जब 2.5 साल बाद आखिरकार ईडी सीबीआई मुख्यमंत्री पद में एकदम बोरिंग बात कर रहे हैं, उन्होंने पार्टी बहुत छोड़ी, बोरिंग है। तब उन्होंने पार्टी छोड़ी ना सर, क्योंकि आपके पसंद की नहीं है इसलिए बोरिंग हो गई। क्या बात है सर, मुकेश गांधी साहब ऐसा तो मत करो यार। मुकेश गांधी साहब, नहीं, प्रियंका पर गांधी एक ही जी, एक स्टोरी हर टाइम रिपीट होती है, हर टाइम ये बातें होती है। मुकेश गांधी साहब, नए टॉपिक पे आइए ना सर। प्रियंका गांधी जी ने कल खुलेआम कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव, आप में दम है तो बैलेट पेपर से चुनाव लो और जीत के दिखाओ ना। हाउ डू यू सी द स्टेटमेंट ऑफ प्रियंका गांधी? कितना वेट है उस स्टेटमेंट में? बोले वोट चोर गद्दी छोड़, वो तो फर्स्ट स्लोगन था। बोला बैलेट पेपर में चुनाव ले लो, हिम्मत है तो। मोदी जी बोलिए। सर ऐसा है, प्रियंका गांधी जी राहुल गांधी जी से थोड़ी आगे है, वो कुछ सोचती अच्छा है, प्रेजेंटेशन भी उसका अच्छा है, मैं उनको तारीफ करता हूं उनकी। पर आज आपको देखना चाहिए कि हमारे मोदी जी ने जो जिस तरह से हमारे राष्ट्र के विकास के लिए काम किया है, आज देखो अणु ऊर्जा क्षेत्र में 74% विदेशी इन्वेस्टमेंट था, वो 100% हो गया। बीमा क्षेत्र में सबका बीमा सबकी रक्षा, इसमें भी 100% इन्वेस्टमेंट फॉरेन का हमारे पास आ गया। तो ये भी तो बता दो, शिक्षा क्षेत्र में देखिए, शिक्षा क्षेत्र में भारत शिक्षा अभियान का प्रस्ताव हो गया, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए सेबी में भी सुधार हो गया। अन्य विस्तारों में गरीबों का जो पहले 100 दिन थे उनको 125 दिन की रोजगारी की खातरी दी गई। रोजगार के लिए पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी का प्रस्ताव भी पास किया गया। ये अभी लेटेस्ट अभी सब रेजोल्यूशंस आए हैं, तो ये इनके बारे में इनका एप्रिसिएशन करने की ताकत कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस को सिर्फ बस वोट चोरी और दूसरे 2-3 इश्यू पकड़ के नैरेटिव सेट करने में ही इंटरेस्ट है। और आज जिस तरह से जॉर्डन में अब्दुल्ला और और देशों में इथियोपिया में जिस तरह से मोदी जी का स्वागत होता है, वो मोदी जी का स्वागत नहीं है सर,
हमारे हिंदुस्तान का स्वागत और करेक्ट सम्मान है। है, करेक्ट है। तो सर आपके सामने एक छोटी सी बात रखूं मैं, छोटी सी बात। हाँ बोलिए सर। सर पहले जब बैलेट पेपर हुआ करता है, मैं मानता हूं बैलेट पेपर में बहुत प्रॉब्लम थी, वोट चोरी बहुत हुआ करती थी, लोग वोट छापा करते थे बैठ के। जब एक बार चुनाव बंद हो जाता लोग वहां में बैठ के वोट छापा करते थे। अब प्रॉब्लम क्या है सर, ईवीएम में जैसे ही कोई ईवीएम के वोट खुलते हैं ना, मालूम पड़ जाता है कि कौन से इलाके से किस पार्टी को वोट पड़ा है, ईवीएम में मालूम पड़ जाता है। बैलेट पेपर में क्या होता था कि पूरे बैलेट पेपर्स को मिक्स किया जाता था, किसी को मालूम नहीं पड़ता था कि कौन से इलाके से किसको वोट पड़ रहे हैं। अभी क्या है कि ईवीएम में मालूम पड़ जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे जुहू में बूथ नंबर ये इतना वोट पड़ा, किसको पड़ा, मान लीजिए बीजेपी को पड़ा या मान लीजिए कांग्रेस को पड़ा। अगर कांग्रेस के वहां पे ज्यादा वोट आए हैं, हमारे ही बीजेपी के लोग आकर के या आप ही के अजीत दादा पवार आकर के बोल देते हैं कि वोट तुम्हारे पास है, पैसे मेरे पास है, बेटा मेरे को वोट नहीं दिया तो मैं तुम्हारी डेवलपमेंट क्यों करूं। सीधी बात है ना सर, तो उसमें गड़बड़ है। तो दे हैव टू वर्क आउट समथिंग वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू नो कि किस ईवीएम में, जो ईवीएम कौन से बूथ का है, ये नहीं होना चाहिए। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, दोज ईवीएम शुड बी मिक्स्ड। किसी को यह मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि कौन से इलाके से किसको कितने वोट पड़े। सर दैट्स अ ह्यूज थिंग, स्पेशली गांव में। गांव में तो सर जितने दमंग होते हैं वो तो आ जाते हैं बंदूक लेकर के, मालूम पड़ जाता है 2 मिनट में तुमने हमारे खिलाफ वोट दिया। तो सर इसके बारे में जरा सोचना चाहिए। नहीं जो कांग्रेस कह रही, मेरी बात सुनिए, सम्मत हूं, आई अप्रिशिएट कि ये सुधारणा ईवीएम के क्षेत्र में होनी चाहिए, क्योंकि किसने कहा कितने मत दिए हैं और जी, एरिया से दिए हैं मालूम पड़ता है। ये डिटेल आने के बाद में बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ जनता होती में। है, स्पेशली गरीब गुरबा लोगों को। और प्रियंका गांधी जी का यह कहना कि अभी आप बैलेट पेपर पे आ जाए इज वेरी अनफेयर। सबसे पहला इलेक्शन ईवीएम पे 2 जगह पे हुआ था, एक मध्य प्रदेश में और एक केरल में 1989 में, जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। उसके बाद नरसिम्हा राव जी के टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ। 2004 में तो पूरा ईवीएम पे हुआ 100%, 2009 में फिर 100% ईवीएम पे हुआ। तो कितनी बार तो कांग्रेस जीत के आई है ना सर, सीधी बात है। सो आई थिंक मुझे लगता है राजीव जी, जब एक वन नेशन वन इलेक्शन का जो गेम सिक्योर होगा, उस वक्त में ये बैलेट पेपर और ईवीएम की जगह कोई नई सिस्टम बैठेगी और इससे एक हमारा बहुत ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हमारे देश में होगा। ऐसा मुझे मेरी समझ में होना भी नहीं चाहिए, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग सर, मेरी समझ में नहीं होना चाहिए। होगा नहीं होगा सेपरेट ऐसी इश्यूज बातें हैं सर, दो सेपरेट बात है। मुकेश गांधी जी। जब भी कोई सुधारणा होगी तब ईवीएम और बैलेट पेपर दोनों में खामियां आजकल तो कोई ईवीएम की बात नहीं बैलेट कर रहा। पेपर को तो मैंने अपनी नजर से मुंबई के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में देखा है, किस तरह से कांग्रेस के लोग वहां बैलेट पेपर को डब्बे खोल खोल के रीत सर के उसमें वोट डालते थे, उठा लेते थे। मैंने सब देखा है, सब पार्टियां करती थी। सर वही चीज अभी ईवीएम से होती है सर। बैलेट पेपर का तो अगर इंट्रोडक्शन हो गया ना सर, तो बड़ी सर लफड़ा हो तकरीबन जाएगी। 8,000 ईवीएम मिले हो रही है सर पिछली बार के चुनाव। छापा चाप लगे ईवीएम से, वही हो रहा है। बट ईवीएम से मगर रिमोट कंट्रोल से कर सकते। द्विवेदी जी उधर बैठ के छपाछप करने की जरूरत नहीं है। आप बैठ जाइए, आप यहाँ गए बगल बैठ जाइए, दबाते रहिए बटन। नहीं जरूरत ही नहीं है सेंट्रल ऑफिस सर, जरूरत ही नहीं है। क्या सर, क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं द्विवेदी जी और मुकेश गांधी साहब? आप तो मैच्योर्ड लोग हैं सर, आप तो ऐसी बात ना करें। नहीं, सर पूरी बात सुने, अरे पूरी बात सुने ऐसा कोई रिमोट से सर, पूरी बात सुने, ये गलत बात है जी। सर पूरी बात सुने, पूरी बात सुने। इलेक्शन होने के पहले ही जैसे ही बूथ खुलता है उसके पहले ही अंदर होता है कि बीजेपी को कितने वोट मिल गए। मैं आपको बता रहा हूं, एक दिन ही बाहर आएगी बात। आई एम टेलिंग यू अगेन, क्या हुआ था कि 2024 के चुनाव में जरा गड़बड़ हो गई। इसकी वजह से now the BJP has had to rethink its strategy. Let me tell you this very frankly. 2024 was a very fair election in most ways because you were not able to manipulate any of the EVMs. That same thing is happening right now, which is why you have a template. 2,000 रुपए अकाउंट में, 7,000 रुपए अकाउंट में, 10,000 रुपए अकाउंट में, as a result of which BJP is winning everywhere and it will continue to win. जिसकी भी सरकार है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कर्नाटका में, आप कांग्रेस को हरा नहीं पाओगे सर, क्योंकि कांग्रेस 20,000 रुपए देगी चुनाव के पहले हर एक के अकाउंट में, एंड इलेक्शन कमीशन कैन नॉट स्टॉप इट।
because you did not stop it in Bihar, you did not stop it in Madhya Pradesh, you did not stop it in Maharashtra. तो जो अभी पावर में है वो सत्ता में ही रहेगा सर. That's my opinion. मुकेश गांधी साहब, पृथ्वीराज चौहान जी का जो प्रेडिक्शन है, फोरकास्ट है 19th of December, some big change in the center. महाराष्ट्र का मराठी मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बनेगा. कुछ सच्चाई है इसमें, आप किस प्रकार से देखते हो? सर ऐसे है, पृथ्वीराज चौहान नहीं पर महाराष्ट्र के हर कोई नेता, सब नेताओं को ऐसा ही लगता है कि भारत का प्राइम मिनिस्टर मराठी ही होना चाहिए. अभी आपको नहीं लगता? मराठी के प्रति लगाव होना वो एक अलग बात है, पर देश में कोई भी मराठी, मद्रासी या गुजराती प्राइम मिनिस्टर तब बनता है जब उनकी लायकी होती है और उनके पास पार्टी का बेस होता है. और ये जो पृथ्वीराज चौहान जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, वो मुझे लगता है कि आपने एक वीडियो वायरल देखी होगी कि जिसमें 19 दिसंबर को मोदी साहब का कुछ खराब होने वाला है, ऐसा होने वाला है, ऐसी सब बातें और उनको एक्सपोज करने वाली है फॉरेन एजेंसियां, उनके मामले में एक बहुत बड़ी वीडियो भी वायरल हुई है. उनका भी अनुसंधान मेरे ख्याल से पृथ्वीराज चौहान ने लिया है और अपनी प्रेस भाई मैंने वो वीडियो राजीव जी को भेजी है, आप जरा देख लेना. तो ये सब क्या है, मनगढ़ंत कहानियां हैं सबकी. सर एक छोटी सी बात आपके सामने रखूं, एक छोटी सी बात आपके सामने रखूं सर. मुकेश गांधी साहब और संजय द्विवेदी जी, दे आर टॉकिंग अबाउट द जेफरी एप्स्टीन फाइल्स. ठीक है, जेफरी एप्स्टीन फाइल्स में जहां पे वो आदमी जो था माइनर गर्ल्स को इस्तेमाल करता था, पता नहीं क्या कुछ करता था वगैरह वगैरह. सर जब जेफरी एप्स्टीन का धंधा चल रहा था ना सर, मिस्टर मोदी वाज बैंड फ्रॉम द यूएसए. मोदी साहब यूएसए में जा नहीं सकते थे उस वक्त. मैं आपको एक बात बता रहा हूं. तो मतलब क्या है भाई, ये सर मनगढ़ंत बातें. आई वुड लाइक टू गो टू मिस्टर द्विवेदी. द्विवेदी जी, ये एनाकोंडा बोलना अमित शाह जी को बार बार उद्धव जी कह रहे हैं. एनाकोंडा कौन? तो आपके शिवसैनिक कह रहे कि एनाकोंडा अमित शाह बोले, तो एनाकोंडा उनको बोलना या गांडुलियाचा औलाद शिंदे को बोलना, ये कितना फिर गलत. गुलाम बोलना शिंदे जी को, क्या ये ठीक है? ये क्या आप मैसेज दे रहे हैं आप पूरे सर? प्रधानमंत्री जी बाहर जा रहे, मेरी आवाज आ रही है आपको? फर्स्ट क्लास आ रही है सर, बहुत बढ़िया आ रही है. मैंने कहा जब प्रधानमंत्री जी बाहर देशों में जाते हैं, वो कहते हैं 2014 से पहले पैदा होना दुर्भाग्य की बात थी, इससे बड़ी बात तो कोई हो नहीं सकती सर. और एक बात नहीं कहा, दो बार कहा ये बात कि इस देश में पैदा होना गुनाह था, तो उनको अपने पैदा होने पे गुनाही थी. जबकि चाहे अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो 2014 से पहले प्रधानमंत्री, चाहे वो हमारे बाकी प्रधानमंत्री रहे हो, उन्होंने आज सुई से लेके हवाई जहाज बनवाना काम शुरू कर दिया. IIM बनवाए, IIT बनवाई, रुड़की विश्वविद्यालय बना, तमाम ऐसे चीजें और बनी है, भाभा अनुसंधान केंद्र बना, तमाम सार्वजनिक उपक्रम बनाए गए, लोगों के लिए बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया क्योंकि बैंकें लोन नहीं देती थी. तो इससे खराब तो सर कोई प्रधानमंत्री. जो प्रदीप जी ने आपसे सवाल पूछा, तमाम ऐसी बातें, 50 करोड़ की जर्सी गाय, विधवा महिला. अरे 50 करोड़ की जर्सी गाय नहीं बोला था यार, नहीं बोला. 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला था. अगर प्रधानमंत्री बात कहे कि मंगलसूत्र, वो शशि थरूर जी के लिए बोला था सर. क्या बोल रहे हैं सर आप? वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला था, वो अभी दुनिया में नहीं है, उनके बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहिए. शशि थरूर जी की जो वाइफ थी, बाद में पहले गर्लफ्रेंड थी, उसके बाद उनकी वाइफ बन गई, वो अभी दुनिया में नहीं है. लेकिन सर मेरा ये कहना है कि क्योंकि मोदी जी ने बोला इसलिए आप भी बोलेंगे, कहने का मतलब यही बना. नहीं, ये नहीं, मैंने ये नहीं कहा. नहीं बजाज जी, ये नहीं कहा. तो फिर आप एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं? 2014 के बाद जो बातचीत का ढंग है, जो बातचीत के तरीके हैं, वो बदल गए. ये देश वही है जहां इंदिरा गांधी ने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था, विदेश भेजा था. इंदिरा जी ने, राजीव गांधी ने वाजपेयी की इलाज कराया था. राजीव गांधी ने भेजा था, इंदिरा जी ने नहीं भेजा था. अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा जी की तारीफ करी थी, प्रशंसा करी थी उनकी बहुत. 1971 की लड़ाई वही करो सर, वही देश है. लेकिन आज क्या हो रहा है? वोट चोरी हो रहा है, आज विधायक तोड़े जा रहे हैं, पार्टियां तोड़ी जा रही हैं. जिसको भ्रष्टाचार पहले कहा जाता था, अब वो इनके अपने आदमी बन गए. चाहे अजीत दादा पवार हो, चाहे कोई हो, मैं नाम नहीं लूंगा. तमाम पीडीपी पार्टी, जो पार्टी जिसको नजरबंद करते हैं, जेजेपी जिसके विरुद्ध चुनाव लड़े थे, वो इनकी अपनी हो जाती है सर. तो मैं यही कह रहा हूँ, इनके जो सिद्धांत हैं, नीतियां हैं, इनकी कारगुजारियां हैं, मुझे लगता है द्विवेदी जी आपकी बात से
अब आपकी दुनिया कब बात समझेगी? से- कब इसका आपकी बात से इलाज मुकेश होगा? गांधी भी ये सहमत भगवान होंगे। भगवान ही मालिक है। कब आप- हमारे सर, मतदाताओं सर, को सर, समझ सर। में आएगा? संजय इस द्विवेदी 10,000 जी। करोड़ रुपए इनकी पार्टी में जमा है, इलेक्टोरल बॉन्ड में करोड़ों अरबों तो आप रुपए भी जमा कमाओ। है। तो हमारा तो आप भी लो। जो है, किसने जो मना हमारे किया? गरीबों मध्यम वर्गीय अरे को सर, मेरी बात इनके सुनिए। दम पर- आपने एक एग्जांपल दी थी जिसके बारे में मैं बोलना नहीं चाह रहा था, अब बोलता हूं क्योंकि आपने ये तीसरी बार बोला है। सर आपको मालूम है, द्विवेदी जी आप ही से बात कर रहा हूं, बढ़िया सर, आपकी शक्ल भी बहुत अच्छी दिख रही है, आपकी आवाज भी बहुत अच्छी आ रही है, सुन लीजिए जरा। कांग्रेस पार्टी 65-60 साल तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया। आपको मालूम है कांग्रेस पार्टी के पास कितना पैसा था? किसी को मालूम नहीं, क्योंकि उस वक्त ऑडिट नहीं होते थे पार्टीज के अकाउंट। ये टीएन सेशन साहब के बाद आने के बाद ये ऑडिट होने शुरू हुए। और दूसरी चीज, ज्यादातर कांग्रेसियों ने अपने घर भरे, ये भी सुन लीजिए, पार्टी के लिए पैसा नहीं खर्चा उन्होंने, ये भी आपको बता दूं। भारतीय जनता पार्टी अभी पावर में है, पैसे कमा रही है, जैसे पहले कांग्रेस कमाती थी। अब मेरा मुंह मत खुलवाइए सर, यहां सर, ये तक तो कोई बात के जवाब नहीं हुआ सर, ये तो पंडित आपकी बात नेहरू जवाब के नहीं वक्त हुआ। भी जो नहीं, ये तो हमारे कोई जवाब फाइनेंस नहीं हुआ मिनिस्टर, सर ना। सर एसके पाटिल साहब कौन सॉरी थे? सर, मैं नहीं मानता हूं सर, ये तो ना जवाब मानिए, नहीं हुआ आपके सर। ऊपर है। एसके पाटिल साहब कौन नहीं, थे? सॉरी सर, जो ये पहले कोई फाइनेंस जवाब नहीं मिनिस्टर हुआ। थे, जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, क्या बोला था उन्होंने? ये उन्होंने सर, ये कहा था, सुन जवाब लीजिए, जवाब अरे तो सुन लीजिए सर, की- नेहरू जी, बहुत स्पष्ट मैं बता एसके दूं। पाटिल साहब की खुद की बायोग्राफी में मैं है, इस बात से उन्होंने आपको खुद समझ बोला नहीं है कि उन्होंने पंडित नेहरू से आकर के बोला कि इन लोगों ने, बिरला जी, डालमिया जी, इन लोगों ने, सिंघानिया जी, बजाज यानी जमनालाल बजाज की फैमिली, मेरे कोई रिलेशन नहीं है, उन्होंने ये आके बोला कि इन लोगों ने हम लोगों की मदद करी, किसमें? फ्रीडम स्ट्रगल में। आज अगर हम इनको कुछ नहीं देंगे, ये सब हमारे खिलाफ हो जाएंगे, मैंने खुद ने वादा किया इनको। तो सर ये क्विड प्रो को तो पहले से ही चलता है, उसमें नई बात क्या है? हाँ, नई बात जो यहां पर हुई है वो ये हुई है कि आपने पहले ईडी को लगा दिया, फिर आपने सीबीआई को लगा दिया, इनकम टैक्स को लगा दिया। तो मेरा ये कहना है, ये नई चीज आई है इंडियन पॉलिटिक्स में। आप जिस जिसको बोलते थे क्या 70,000 करोड़ का स्कैम, 50,000 करोड़ का स्कैम, वो सब अब बीजेपी में है। वो 70,000 करोड़ का स्कैम कहां गया किसी को मालूम नहीं है, 50,000 करोड़ का स्कैम कहां गया किसी को मालूम नहीं है। वो कितने 2,000 करोड़ हमारे एक बड़े अच्छे मित्र हैं, मधु कोटा का पैसा उनके पास पाया गया, लग रहा था कि अभी अरेस्ट होंगे के होंगे, जैसे बीजेपी में गए केस खत्म। केस खत्म नहीं हुआ है वैसे, बाय द वे केस चल रहा है बट सस्पेंडेड एनिमेशन में है। मेरा ये कहना है ये नई चीज आई है इंडियन पॉलिटिक्स में। और मुकेश Very गांधी frankly. साहब, जो मोदी साहब का फर्स्ट भाषण 2014 में, तभी ईडी नहीं था उतना, उन्होंने कहा सीबीआई विल नॉट डिस्टर्ब द इंडस्ट्रियलिस्ट। यस, सीबीआई का डर आज उल्टा ही हो रहा है। उल्टा हो रहा है। उन्होंने इनफैक्ट ये बोला था, प्रदीप जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुकेश गांधी जी, सुनिए वो भाषण अगर है तो मैं आपको भेज देता हूं, मैं कल सुना भी दूंगा उनका। मंडे को सीबीआई, ट्यूसडे को इनकम टैक्स, वेडनेसडे को एसएफआईओ, फिर उसके बाद ईओडब्ल्यू, फिर उसके बाद एक और एजेंसी का नाम लिया उन्होंने वो, और सैटरडे को प्रिपरेशन फॉर मंडे। इंडस्ट्रियलिस्ट काम कब करेगा? ये मोदी जी का भाषण है सर। और आगे उन्होंने एग्जैक्टली वही किया। सर दिस इज नॉट राइट, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। और अभी क्या है मुंबई में क्या चल रहा है मैं आपको बता रहा हूं। आप यू आर अ बीजेपी सपोर्टर, आई ऑल्सो एडमायर मिस्टर मोदी, हाउएवर द फैक्ट रिमेन्स इवन इन मुंबई में आप जहां मर्जी जाइए आपको सिर्फ अडानी जी दिखेंगे। ये प्रोजेक्ट अडानी, ये प्रोजेक्ट अडानी, वो भी अडानी, ये भी अडानी, वहां भी अडानी, अब तो डिफेंस में भी अडानी। सर वो जो लाइट मशीन गन है, 40,000 लाइट मशीन गन हैव बीन ऑर्डर्ड फ्रॉम द अडानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। सर हर चीज में अडानी जी, और कोई दिखता ही नहीं है सर पूरे हिंदुस्तान में, और कोई नहीं है लग रहा है मेरे को। इन एनी इवेंट वील डिस्कस दैट एट सम अदर पॉइंट ऑफ टाइम। जेंटलमैन थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे पास आए और हम हमारे साथ अभी तक आप बैठे हैं, इसके लिए भी और भी शुक्रिया आपका। जय सिया राम, हर हर महादेव। जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, वंदे मातरम। वंदे मातरम, जय हिंद। जय हिंद सर, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. So Pradeep ji, till now Rahul Gandhi ji has not condemned the Bondi Beach or Australian Bondi Beach Terror attack. in Australia on the first day of Hanukkah, the Jewish New Year. This is terrible. The first candle which was to be lit over there, these guys, these two Pakistanis came over there and killed about 16 people. Well, I thought terrorism had no There religion. is one thing also, if you see, Ji, if
some people are ready to take on the terrorist. We talked about the same thing in Pahalgam कि एटलीस्ट 2-3 उस आतंकवाद पे लपटते झपटते जो भी है फौजी के, अनफॉर्चुनेटली वी नॉट ट्रेन फॉर दैट, बट यहाँ पर आपने देखे एक आदमी हाउ ही ओवरकम दैट स्मॉल दैट सन, उसको पकड़ लिया, लपेट लिया और उसको फेंक दिया उस तरफ. His name is Ahmad Al-Ahmad and he got shot himself, by Yes. the way. He's okay now. He's just been operated on. Yes. ठीक है अभी. So he, totally de-weaponized him and managed to pin him down. Yes. So he saved more deaths. Yes. He's a hero. He's a hero. So you need some guys who are already going to take on this terrorist, because now the terrorists believe that कुछ नहीं होगा, सब डरपोक है, सब भागते रहेंगे. जी हाँ. If you have 1 or 2 of them who's going to take on these guys, you find that they easily overcome. दुरुस्त बात है सर. इसलिए वो तो शुरू से हम लोग कह रहे हैं यहाँ पर भी वेपन्स ट्रेनिंग होनी चाहिए, मार्शल आर्ट हर एक को सिखाना चाहिए और मालूम होना चाहिए हाउ टू रिस्पॉन्ड टू अ टेररिस्ट अटैक. सीधी सादी बात है, ठीक है. लेकिन इस आदमी ने, ये अहमद अल अहमद जो है, सीरियन, ही इज अ सीरियन इमिग्रेंट टू ऑस्ट्रेलिया, ही ओन्स अ फ्रूट स्टॉल. ये शख्स जो है, इसने जाकर के वो उसका जो बेटा है, दैट सन ऑफ हिज, उसको पकड़ा और उसके बाप ने इसको गोली मारी. मेरा ये कहना है, but this is terrible. What is happening at the moment is terrible. Why wouldn't Rahul Gandhi condemn this? सर ये क्या हो क्या रहा है? Why wouldn't Rahul Gandhi condemn this? I'm sure Rahul Gandhi does not manage his own Twitter account. I am reasonably certain whosoever manages that account must be feeling that because the attack is on Jews, maybe The Muslim we votes. might alienate the Muslim population. I mean, come on. What are you up to? What is going on here? Things have to change. The mindset have to change. You accuse the BJP of playing politics over votes and religion. What are you doing? What are you doing? Exactly. What are you doing? अभी तक आप बोलते थे आतंकवाद का कोई रिलीजन नहीं होता, धर्म नहीं होता, तो ये जो ऑस्ट्रेलिया में अटैक हुआ है उसको आपने कंडेम क्यों नहीं किया अभी तक? इन एनी इवेंट, दैट्स जस्ट अबाउट इट फॉर टुनाइट शो. आज के शो में सिर्फ इतना ही. आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ रहने के लिए. और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया तो कर लें. प्लीज सब्सक्राइब When you चैनल. click to that icon subscribe, you subscribe to the fastest growing channel of the nation, Nation Now. नेशन नाउ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें अगर आपको पसंद आया हो, और कमेंट जरूर भेजें अपने. प्लीज सेंड इन योर कमेंट्स. एंड नेशन नाउ इज लाइव ऑन फेसबुक and on Twitter, which is X, and shortly to be live on Instagram as well. Right, that's just about it from both Pradeep ji and myself and the entire team at Nation Now. Nation Now की पूरी टीम की तरफ से आप सब लोगों को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, Vande Mataram. भारत माता की जय, Bharat Mata ki jai. जय हिंद. Jai Hind.